વાલા વૈષ્ણવો, આપણામાં એવા કયા 30 દોષો રહેલા છે કે જેના કારણે આપણામાં અહંભાવ રહે છે અને દીનતા અને નિસાધનતા પ્રવેશી શકતા નથી. તો નિસાધનતાનું સ્વરૂપ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી 37માં શિક્ષાપત્રમાં સમજાવે છે. વાલા વૈષ્ણવો, શ્લોક સંખ્યા તો 8 જ છે, પરંતુ ખૂબ સુંદર રીતે, ખૂબ જ વિસ્તારથી અહીં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આપણા દોષોનું વર્ણન કર્યું છે. તો ચાલો તેનું ભાવ દર્શન કરીએ કે આપણે જીવનમાં એવું તે શું કરીએ કે જેના કારણે આપણામાં નિસાધનતા અને દીનતાનો ભાવ રહે. કારણ કે દીનતાથી જ પ્રભુ રીઝે છે. પ્રભુ પાસે તો બધું છે. આપણે દીન ભાવે પ્રભુને ભજીએ તો પ્રભુને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. કારણ કે બધું પ્રભુનું છે અને પ્રભુને અર્પણ કરવાનું છે. તો તેમાં આપણો તો કોઈ રોલ જ નથી. તો પછી દીનતાથી પ્રભુ પાસે રહીએ તો પ્રભુને આનંદ આવે. સૌપ્રથમ આપણે એ જોઈએ કે એવા તે ક્યાં દોષો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ વર્ણવ્યા છે. તો સૌપ્રથમ તેનો સારાંશ જોઈએ. શિક્ષાપત્ર 37મો, નિસાધનતાનું સ્વરૂપ. નિસાધનતા વિચારવા, પોતાના દોષો વિચારવા. સામાન્ય રીતે આપણામાં આ પ્રમાણેના દોષો હોય છે. ધ્યાન આપજો વાલા વૈષ્ણવો, આપણે આત્મચિંતન કરવાનું છે કે આમાંથી આપણામાં કયા દોષ રહેલા છે અને તેને દૂર પણ કરવાના છે. હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવનો અભાવ, એટલે કે આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ ન રહેતા હોઈએ, જેવા હોઈએ તેવા પ્રભુ પાસે ન જતા હોઈએ તો શુદ્ધ ભાવનો અભાવ કહેવાય. સર્વાત્મ ભાવનો અભાવ એટલે બધામાં પ્રભુને જોવા, એવો સર્વાત્મ ભાવનો અભાવ. દીનતાનો અભાવ, આપણામાં દીનતા ન હોય, અહંભાવ હોય. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓના પાલનમાં તત્પરતાનો અભાવ. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓ તો જાણતા હોઈએ, પરંતુ તેને પાલન કરવા જરા પણ તત્પરતા ન હોય. અવિશ્વાસ, પ્રભુ પર વિશ્વાસ ન રાખીએ તો. પ્રભુ માટે અનાદર, સત્સંગનો અભાવ, સેવાનો અભાવ, નિવેદનની વિસ્મૃતિ, એટલે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે, આપણું બધું જ પ્રભુને સમર્પિત કર્યું છે, તો પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ કે આ બધું પ્રભુનું છે અને હું કર્યા કરીએ. આશ્રયહીનતા, પ્રભુનો દ્રઢ આશ્રય ન હોય, શ્રી મહાપ્રભુજીનો દ્રઢ આશ્રય ન હોય તો પણ એ આપણામાં દોષ છે. વિવેક, ધૈર્ય અને શરણાગતિનો અભાવ. આપણામાં વિવેક, ધૈર્ય ખૂટી જાય અને આપણે ભૂલી જઈએ કે આપણે તો શરણાગત જીવ છીએ, એનો અભાવ. કારણ કે આપણે ફક્ત કહેવા માટે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું છે, પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારી નથી. કંઈ પણ મુશ્કેલી આવે તો હું કરી લઉં કરીએ છીએ. આપણે તો એક પ્રભુના ખિલોના છીએ. પ્રભુ જેમ ખેલાવે તેમ ખેલવાનું છે. આપણે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ, બાકી બધી પ્રભુની ઈચ્છા જ કાર્ય કરે છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને શ્રી કૃષ્ણના મહાત્મ્યનું અજ્ઞાન, એ પણ આપણામાં દોષ છે. સ્નેહનો અભાવ, આસક્તિ અને વ્યસનની દુર્લભતા, ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ ન હોવો, ધર્મ માર્ગમાં સ્થિતિ ન હોવી, અશુદ્ધ દેશ આદિ કાલ દોષથી વૈદિક ધર્મનો અભાવ, વ્યાવૃત્તિની અતિશયતા. પૈસા કમાવા માટે એવા આપણે ગાંડાતુર થઈએ છીએ કે પ્રભુને ભૂલી જઈએ છીએ. એના કારણે આપણામાં આ દોષ હોવાને કારણે આપણે પ્રભુથી વિમુખ થઈ જઈએ છીએ. પ્રભુમાં ચિત્ત ન લાગવું, લૌકિકમાં ચિત્ત લાગેલું હોય એટલે પ્રભુમાં ચિત્ત ક્યાંથી લાગે. સેવા અર્થે ત્યાગ ન હોવો, સેવામાં પણ હું કરું, જ્યાં સુધી આપણે પુણ્ય મેળવવાની ભાવનાએ કરીશું ત્યાં સુધી કંઈ જ કામનું નહીં. આપણે તો પ્રભુના સુખ અર્થે જ સેવા કરવાની છે. હું વધારે સેવા કરી લઉં તો મને વધારે લાભ થાય, એવી રીતે ન કરતા હળી મળીને ચાલ્યા ચરણાટ જ્યાં નિજ ધામ, બધા સાથે મળીને સેવા કરીએ. મન વશમાં ન હોવું, આપણું મન ખૂબ જ ચંચળ છે. મનને એક સેકન્ડ પણ એમનેમ રહેવું ગમતું નથી, એ કોઈ પણ વિષય શોધ્યા જ કરે. તો જો આપણે પ્રભુમાં મન નહીં લગાડીએ
તો એ મન લૌકિકમાં ભટક્યા કરશે. તો આપણે પ્રભુમાં મન લગાવવું, મનને વશમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. પછી છે શ્રી કૃષ્ણના વિરહનો અભાવ. આ પણ આપણામાં દોષ છે કે આપણે બ્રહ્મ સંબંધનો ભાવાર્થ તો બોલીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડે હજારો વર્ષોનો સમય વ્યતીત થવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે હૃદયમાં જે તાપ ક્લેશનો આનંદ થવો જોઈએ તે જેને તિરોધાન થયો છે એવો હું જીવ ભગવાન કૃષ્ણ શ્રી ગોપીજન વલ્લભને દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, તેના ધર્મો, પતિ, ઘર, પુત્રી, કુટુંબ, ધન, આલોક અને પરલોક આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું. હું દાસ છું, હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું. આપણે આ અત્યારે ભૂલી ગયા છીએ એટલે આપણને શ્રી કૃષ્ણનો વિરોધ થતો નથી, તાપ ક્લેશનો આનંદ થતો નથી. મન અને વાણીના સંયમનો અભાવ. આપણે આપણા સ્વભાવનો રિમોટ બીજાના હાથમાં આપી દીધું છે કે કોઈને ગુસ્સો કરાવવો હોય તો એ સ્વિચ દબાવે એટલે આપણે સીધો ગુસ્સો કરીએ. તો આપણું રિમોટ કોઈના હાથમાં ન આપતા મન અને વાણીનો સંયમ રાખવો, કોઈને પણ દુઃખ ન લાગે એ રીતે રહેવું. કારણ કે બધાના હૃદયમાં પ્રભુ બિરાજે છે, તો કોઈને દુઃખ લાગે એવું ન કહેતા નમ્રતાથી જ વાત કરવી. ત્યારબાદ છે અભક્તોમાં પ્રીતિ, એટલે કે જેને ભગવાનમાં જરા પણ પ્રીતિ ન હોય એવા લૌકિક જીવોમાં આપણે આસક્તિ રાખીએ, પ્રીતિ રાખીએ તો એ પણ દોષ છે. ત્યારબાદ ગૃહ, ધન, કુટુંબ, ધંધામાં આસક્તિ, એટલે આ બધું લૌકિક સંસારની વાત કરી રહ્યા છે, એમાં આસક્તિ એ દોષરૂપ છે. આપણે તો ટ્રસ્ટી છીએ અને પ્રભુએ આપેલું આપણે બધું એ રીતે વાપરવાનું છે, એ યાદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ છે અભિમાન અને મદ. અભિમાન અને મદ આપણામાં એટલા બધા રહેલા છે કે મારું જેવું કોઈ નહીં. આપણે ઘણી જગ્યાએ સાંભળતા હોઈએ છીએ કે જો હું ન હોઉં ને તો ખબર પડી જાય કે આ ઘર કેમ ચાલે. એવું અભિમાન ન કરવું જોઈએ. કોઈ પણ જીવ ભગવત ચરણારવિંદમાં પહોંચી જાય છે તો તેના પછી પણ તેનું ઘર ચાલે જ છે, કોઈનો સંસાર અટકતો નથી. માટે એવું અભિમાન જરા પણ ન કરવું, હું ન કરવું. ત્યારબાદ છે સર્વ ધર્મ પાલનનો આગ્રહ નહીં, સ્વધર્મ પાલનનો આગ્રહ નહીં. આપણે વેદ મર્યાદાઓ જે દર્શાવેલી છે, આપણા ઘરમાં વડીલો જે ધર્મ પાલનનું કહેતા હોય એ કરવા જોઈએ, આચાર વિચાર રાખવા જોઈએ. એનો આપણે આગ્રહ નથી રાખતા, તેના હિસાબે આપણામાં ઘણા દોષો પ્રવેશે છે. ત્યારબાદ છે 29મો અન્ય ધર્મોમાં પ્રવૃત્તિ, એટલે આપણે બીજા ધર્મો વિશે જાણવા જઈએ અને તે તરફ પ્રેરાઈએ તો એ બીજા ધર્મોની પ્રવૃત્તિ પણ દોષરૂપ છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ સાંભળતા હોઈએ છીએ કે બધા ભગવાન સરખા છે, તો એ આપણે ભૂલ ભરેલી વિચારસરણી છે. બધા ભગવાન સરખા નથી. કોઈ પ્રભુના અંશ અવતાર છે, કોઈ કલા અવતાર છે, કોઈ અંશ અવતાર છે. એટલે એવી રીતે પ્રભુઓના અલગ અલગ રૂપ છે. એટલે ઘણામાં 64 કલા બિરાજતી હોય, ઘણામાં 32 કલા બિરાજતી હોય, કોઈ જ્ઞાન અવતાર હોય. એટલે પ્રભુ બધા ભગવાન એક સરખા ન કહેવાય. અમુક અંશે તેમાં એ આવેશ બિરાજતો હોય, એટલે એ પ્રકારે આવેશ અવતાર પણ હોય. આપણા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ આપણે ક્યારેય પણ ભૂલવું ન જોઈએ. વાલા વૈષ્ણવો, આ તો આપણે સામાન્ય રૂપરેખા લીધી કે આપણામાં ક્યાં દોષો રહેલા છે. હવે 37મા શિક્ષાપત્રનો ભાવાર્થ જોઈ સંસ્કૃતમાં પાઠ કરીશું. શિક્ષાપત્ર 37મો ભાવાર્થ. હૃદયમાં શુદ્ધ ભાવ નથી, સર્વાત્મ ભાવ નથી, દીનતા નથી, શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં તત્પરતા નથી, વિશ્વાસ નથી, પ્રભુમાં આદર નથી, સત્સંગ નથી, સેવા નથી, નિવેદનની સ્મૃતિ નથી, આશ્રય નથી, વિવેક નથી, ધૈર્ય નથી, શરણ સ્થિતિ નથી, શ્રી કૃષ્ણના મહાત્મ્યની સ્ફૂર્તિ નથી, કોઈ ઠેકાણે સ્નેહ નથી, આસક્તિ અને વ્યસનાદિની વાત તો દુર્લભ છે, ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ નથી, વળી ધર્મ માર્ગમાં સ્થિતિ નથી, દેશાદિ પણ શુદ્ધ ભાવવાળા નથી, કાળ દોષથી વૈદિક ધર્મ પણ નથી, વ્યાવૃત્તિ વગર ચાલતું નથી
અને વ્યાવૃત્તિને લીધે હરિમાં મન લાગતું નથી, વળી સેવા અર્થે ત્યાગ પણ નથી, તો પછી મનને પોતાને વશ કરી સ્વતંત્ર થવાની તો વાત જ શી કરવી? શ્રી કૃષ્ણના વિરહની સ્ફૂર્તિ નથી, વાણી અને મનનો સંયમ નથી, અભક્તોમાં ઉદાસીન વૃત્તિ નથી, ગૃહાદિકમાં અનાસક્તિ નથી, અહંકારાદિનો અભાવ નથી, સ્વધર્મનો પરિગ્રહ નથી, વળી અન્ય ધર્મની નિવૃત્તિ નથી. આવી રીતે હું દોષોના ભંડારરૂપ છું અને સર્વ સદગુણોથી રહિત છું, તો પછી પ્રભુ મારી શી ગતિ કરશે? આ પ્રમાણે જીવે નિસાધનતાની ભાવના કરવી. વાલા વૈષ્ણવો, હવે આપણે વિસ્તારથી આ શિક્ષાપત્ર સમજીએ. કુલ શ્લોક સંખ્યા 8 છે અને વિષય નિસાધનતાના સ્વરૂપનો વિચાર. 36મા શિક્ષાપત્રમાં શ્રી હરિરાય ચરણે મહાપ્રભુજી વિરચિત નવરત્ન ગ્રંથનો વિશેષ પ્રકાર પ્રગટ કર્યો. ચિંતા થવાના કારણો, ચિંતાની નિવૃત્તિના ઉપાયો વગેરે સર્વ કંઈ આપણને સમજાવ્યું. 37મા શિક્ષાપત્રમાં શ્લોકોની સંખ્યા માત્ર 8 છે, પરંતુ આ 8 શ્લોકો આ આધુનિક સમયના વૈષ્ણવની બાહ્ય અને આંતરિક સ્થિતિનું આબેહૂબ દર્શન કરાવનારા છે. અને તેથી આ 8 શ્લોકોને વિચારતા એમ લાગે છે કે જાણે શ્રી હરિરાય ચરણ આપણા શરીરના સર્વ અંગોમાં આપેલા દોષોનું નિદાન કરી રહ્યા છે. 37મા શિક્ષાપત્રમાં નિસાધનતાના સ્વરૂપનો વિચાર છે. આ નિસાધનતા એટલે શું? એના વિશે આપણા મનમાં કાં તો ગેરસમજ છે અને કાં તો અધૂરી સમજ છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે કંઈ ન કરવું, શક્તિ હોવા છતાં ન કરવું, અને એમ કહેવું કે મારાથી શું બને, તેનું નામ નિસાધનતા. આપણે અસાધન હોવા છતાં એ સર્વ સાધનોનો લૌકિકમાં ઉપયોગ કરવાની મનમાં આસક્તિ રાખીએ અને એ સર્વ સાધનો પ્રભુને માટે ન વપરાય, એની લેશ માત્ર સંવેદના આપણા મનમાં ન થાય, એ તો ભાવના ભૂખ્યા છે. આવું લક્ષણ, આવું વલણ એને આપણે નિસાધનતા માનીએ છીએ. એક બેઠકજીનો પ્રવેશ દ્વાર ખૂબ ભવ્ય. એમાંથી અંદરના ચોકમાં જઈએ એટલે દિવાલ પર આરસની બહુ મોટી તકતીઓ લાગેલી છે. આ બેઠકજીના નવનિર્માણ કાર્યમાં જેમણે પોતાનું દૈવી દ્રવ્ય વિનિયોગ કરાવ્યો, એમની એમાં યાદી છે. આપણને એમની સામે કઈ વાંધો નથી. એ યાદી સાથે શિક્ષાપત્રનો એક શ્લોક કોતરવામાં આવ્યો. નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિસ્તુષ્યતિ કદાચન ભક્તાનામ દૈન્યમેવેકમ હરિતોષણ સાધન. પછી નીચે અર્થ કોતર્યો છે કે આપણા પ્રભુ ભૌતિક સાધન સંપત્તિથી કદી પ્રસન્ન થતા નથી. ભક્તોનો દૈન્ય જ કેવળ પ્રભુની પ્રસન્નતાનું કારણ છે. આવો સુંદર સિદ્ધાંત મૂક્યા પછી નીચે લખ્યો કે આ બેઠકજીના જીર્ણોદ્ધારમાં સેવા આપનારાઓની યાદી શેઠ ફલાણા ફલાણા ફલાણા. જ્યાં દાસ બનીને જવાનું હોય એ શ્રી વલ્લભ ગૃહે આપણે શેઠ બનીને ગયા, અને પાછા એમ કહીએ કે સાધન સંપત્તિથી પ્રભુ રીતતા નથી, દીનતાથી પ્રભુ રીઝે છે. આ વદતો વ્યાઘાત જેવી વિચિત્ર સ્થિતિ છે. 84 વૈષ્ણવોમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ એક જ વૈષ્ણવને શેઠ કહીને બોલાવ્યા, અને તે દિનકર દાસને. કથા શ્રવણમાં આસક્ત દિનકર દાસ જ્યારે અડેલ આવ્યા છે અને શ્રી મહાપ્રભુજીની કથાનું શ્રવણ કરીને શરણે આવવાની વિનંતી કરી છે, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી એમને કહ્યું કે આવો દિનકરદાસ શેઠ. બીજા કથાકારો તો દિનકરદાસને શેઠ કહેતા, કારણ કે દિનકરદાસ ઘરમાંથી ચોરી કરીને પણ ઘરેણા અને રૂપિયા એ કથાકારોની પોથી પર પધરાવી આવતા. આજે દિનકરદાસને ભારે ગ્લાનિ છે કે જેમને મને સાક્ષાત કૃષ્ણ સ્વરૂપે અનુભવ થાય છે એવા શ્રી વલ્લભ મને શેઠ કહીને બોલાવે છે. હું તો એમનો સેવક બનવા આવ્યો છું. કોઈને શેઠ કહીએ ત્યારે શેઠને અનુરૂપ એની પાસેથી રકમ મેળવવાની અપેક્ષા હોય ને. આજે મને શેઠ કહ્યો તો મારું શેઠ પદ સાર્થક કરવું જોઈએ. હું આપના ચરણમાં શું ધરું? ભાઈ ભાભી સાથે ક્લેશ કરીને પહેરેલા કપડે નીકળી ગયો છું. યાદ આવ્યું કે આંગળી પર એક સોનાની વીંટી રહી છે, આટલી જ મૂડી છે, ખિસ્સામાં એકે કોડીએ નથી. ઝટ વીંટી ઉતારી શ્રી વલ્લભના ચરણમાં ધરી શેઠ પદ સાર્થક કર્યું. શ્રી ગોકુલનાથજીએ 84 વૈષ્ણવમાં 2 વૈષ્ણવોને શેઠ કહ્યા. એક કાશીવાળા શેઠ પુરુષોત્તમદાસ અને બીજા કનોજવાળા દામોદરદાસજીને. કારણ કે લૌકિક દ્રષ્ટિએ એ નગર શેઠ હતા, પણ ભગવત સેવામાં એમની લૌકિક શેઠાઈ ક્યારેય પ્રતિબંધક એવા અભિમાન રૂપ ન બની હતી.
માટેની સાધનતાનો સાચો અર્થ શીખવો હોય તો શેઠ પુરુષોત્તમદાસજી અને શેઠ દામોદરદાસજી પાસેથી શીખાય. શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે જગતમાં 3 પ્રકારના ભક્તો છે, જીવો છે. સૌને પ્રભુએ કંઈક ને કંઈક સાધન સંપત્તિ આપેલી છે. કોઈકને કેવળ પહેરવાના એક જોડ કપડાનું સાધન છે, તો કોઈકની પાસે આખા દેશના ગરીબ લોકોને પહેરાવી શકાય એટલા કપડાં ખરીદવા જેટલા રૂપિયા છે. સૌની પાસે આવી સાધન સંપત્તિ તો છે જ. આ સાધન સંપત્તિનો જે ભાવથી ઉપયોગ કરવામાં આવે એ ભાવને અનુરૂપે જીવ કહેવાય. જે પોતાની સાધન સંપત્તિનો ઉપયોગ પોતાનો ધર્મ સમજીને કરે છે, પરોપકાર અર્થે કરે છે, એનો થોડો થોડો અહંકાર રહે છે, એ બધા સસાધન જીવો છે. સાધન દ્વારા ભક્તિ કરનારા જીવો, સાધનથી ભક્તિનું ફળ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા રાખનારા જીવો એ સસાધન જીવ. સાધનમાં કેવળ ભૌતિક સાધનો જ નહીં, પારલૌકિક સાધનો પણ આવી જાય. જેમ કે કોઈ જીવ એવો વિચાર કરે કે હું આટલા જપ કરીશ, આટલા પાઠ કરીશ તો એનાથી મને આ ફળ પ્રાપ્તિ થશે, તો એ પણ સસાધન જીવ કહેવાય. જીવોનો બીજો પ્રકાર બતાવ્યો દુષ્ટ સાધન જીવ, જે પોતાના સાધનો, પ્રભુને આપેલા સાધનોનો ઉપયોગ સત્કાર્યોમાં નથી કરતો, દુષ્ટ કાર્યોમાં કરે છે. એ દુષ્ટ સાધન જીવ. શરીરની શક્તિ પ્રભુએ આપી, એ શક્તિનો ઉપયોગ નબળાના રક્ષણ માટે થાય તો એ સસાધન જીવ પણ પ્રભુએ આપેલી શક્તિનો ઉપયોગ કોઈને રંજાડવા, પીડા આપવા થાય, ડર આપવા માટે થાય તો એ દુષ્ટ સાધન જીવ કહેવાય. આપણે આપેલી સંપત્તિ જરૂરિયાતમંદોના ઉપયોગમાં આવે તો એ સસાધનતા, પણ એ સંપત્તિ આપણા મોક્ષમાં વેડફાઈ જાય તો એ દુષ્ટ સાધનતા. શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે આ બંને પ્રકારના જીવોને પુષ્ટિ ભક્તિનું ફળ ક્યારેય મળતું નથી. પુષ્ટિ ભક્તિનું ફળ એટલે આંખોમાંથી અને અંતઃકરણમાંથી બંને રીતે સંયોગ અને વિપ્રયોગમાં ઉભય પ્રકારે રસરૂપ પ્રભુ અને એમની રસરૂપ લીલાઓનો અનુભવ કરવો. આવું ફળ જેને વ્રજભક્તોએ શ્રીમદ ભાગવતમાં અક્ષણવતામ ફલમ ઇદમ ફલમ કહીને બતાવ્યું કે અમારી આંખું હોવાનું એક જ ફળ છે અને તે આપના સાક્ષાત દર્શનનો અનુભવ થાય છે. અમારા કાન હોવાનું એક જ ફળ છે, આપના અલૌકિક વેણુનાદનો કલરવ અમારા કાન ઝીલે. અમારી જીભ હોવાનું કારણ એક જ ફળ છે કે આપની પ્રસન્નતા માટે આપના યશોગાન ગાઈએ. અમારા હાથ અને પગ હોવાનું એક જ ફળ કે એના દ્વારા આપની સાક્ષાત સેવા થાય. અમારું હૈયું હોવાનું એક જ ફળ, એ હૈયું આપના ચરણોમાં સમર્પિત થાય. આવું પુષ્ટિ માર્ગીય પરમ ફળ જેને શાસ્ત્રોએ ઉત્તમોત્તમ ફળ કહ્યું છે, જેનો અનુભવ વેદની શ્રુતિઓ પણ નથી થયો. શ્રુતિથી પ્રભુના સ્વરૂપનું પૂર્ણ રીતે નિરૂપણ પણ કરી શકાયું નથી. અને એમણે કહી દીધું કે અમારી પણ શક્તિ નથી કે પ્રભુનું સ્વરૂપ અમે પૂર્ણ રીતે સમજાવીએ, કારણ કે અમને પણ એનો અનુભવ ક્યાં છે. હવે એક અમેરિકન ભારતમાં આવ્યો અને પછી શું થયું તે આપણે આવતા પાઠમાં જોઈશું, કારણ કે ખૂબ જ સમજવા જેવું છે. વાલા વૈષ્ણવો, આપણા બધાના મનમાં આવા પ્રશ્નો થતા હોય છે કે પ્રભુ કઈ રીતે પ્રસન્ન થાય, પ્રભુને શું ગમે. શું આપ જાણો છો કે પ્રભુને આપણે કઈ વસ્તુ આપીએ તો પ્રસન્ન થાય? શું સુંદર સામગ્રી ધરાવીએ એટલે પ્રસન્ન થાય, કે પછી બીજું કંઈ કરીએ તો પ્રસન્ન થાય? તો પ્રભુ કહે છે કે મેં આપેલું તું મને આપે, એમાં મને પ્રસન્નતા શાની? તો પ્રભુને શું જોઈએ છે? તો પ્રભુ કહે છે કે બસ તું તારું મન મને આપી દે ને તો હું ખૂબ પ્રસન્ન થાઉં. તું જે કર તે ભલે કર, ભલે ઘરકામ કર, ભલે ઓફિસે જા, ભલે ધંધો કર, ગમે ત્યાં જા, પણ તારું મન મારામાં લગાડી દે, મારી સાથે જોડી દે, તો હું તારા ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈશ. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? આપણું મન પ્રભુના ચરણારવિંદમાં ધરી દેવાનું છે. જાકો મન લાગ્યો ગોપાલ સો, તાહી ઓર કેસે ભાવે હો. એ પદનું ભાવ દર્શન આપણે સમજીએ ને તો આપણને એ સમજાય કે પ્રભુને શું ગમે.
એટલે આપણા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ કહ્યું છે, ચિત્તસ્તત પ્રવણમ સેવા. ચિત્તનું પ્રભુમાં પરોવાવું એ સેવા છે. આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોઈએ અને ચિત્ત બીજે ભટક્યા કરે તો એ સેવા ન રહેતા ફક્ત ક્રિયા જ બની રહે છે. માટે મન પ્રભુમાં લગાડીને સેવા કરવી. અને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ પણ દીનતા અને નિસાધનતાના સ્વરૂપનું ખૂબ જ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. એટલે વાલા વૈષ્ણવો, આજે આપણે જોઈશું કે પ્રભુને શું ગમે અને દીનતા અને નિસાધનતા પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવોના જીવનમાં શા માટે જરૂરી છે. તો ચાલો તેનું ખૂબ જ સુંદર ભાવ દર્શન કરીએ. આજનો આ સત્સંગ શરૂ કરીએ તે પહેલા સૌપ્રથમ શ્રી કાલિંદી બેટીજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. ગઈકાલે કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં મેં આ સાંભળ્યું હતું કે પ્રભુનું મનગમતું શું, પ્રભુને શું ગમે. આપના હૃદયને સ્પર્શી જશે એવી વાતો આજે હું કરવાની છું. પ્રભુને શું ગમે? પ્રભુને દાસ્ય ભક્તિ ગમે. દાસ્ય ભક્તિ એટલે શું તે આપણે જોઈશું. પહેલા શું ગમે તેનું રસ દર્શન કરીએ. પ્રભુને દાસ્ય ભક્તિ ગમે, અનન્યતા ગમે, દ્રઢાશ્રય, આત્મનિવેદન, દીનતા, વિવેક, આદર, આ બધું જ પ્રભુને ગમે. આપણા પ્રભુ ભક્તના સુખમાં સુખી અને દુઃખમાં દુઃખી. પ્રભુને નમ્રતા ગમે, આદર ગમે. નથી ગમતું તો ક્રોધ, અન્યાય, અસત્ય, અન્યાશ્રય. તો આપણા પ્રભુને દાસ્ય ભક્તિ ગમે તો આપણે પણ એક સારા એવા દાસ બનીને ઠાકોરજીની સેવા કરીએ. દાસની ફરજમાં શું આવે તો પ્રભુના સુખનો વિચાર કરવાનો. અનન્યતા. અનન્યતા એટલે ફક્ત એક એટલે એકને જ પ્રેમ, બીજા કોઈનો આશ્રય નહીં. આપણે દ્રઢ આશ્રય કહીએ છીએ. એટલે દ્રઢ આશ્રય હોય, મૂળ મજબૂત હોય તો આખું વૃક્ષ મજબૂત બને. માટે પ્રભુને દ્રઢ આશ્રય ગમે છે. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય કરીએ તો પ્રભુને આનંદ આવે. પ્રભુને આત્મનિવેદન ગમે. આત્મનિવેદન એટલે અહીં આત્માની વાત કરવામાં આવી છે. ફક્ત લૌકિક દેહ નહીં પરંતુ આત્માથી સર્વ સમર્પણ કરવાનું છે. પ્રભુને એ ગમે. પ્રભુને દીનતા ગમે. દીનતા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીને દીનતા સાગર કહેવામાં આવ્યા છે. દીનતા એટલે કોઈ પણ પ્રકારની અહંતા મમતા ન રહેતા બધું દાસ ભાવેથી કરવું અને છતાં પણ મનમાં એવું રહે કે મારાથી કંઈ પણ બની શકતું નથી. અને પ્રભુને વિવેક ગમે. વિવેક આપણે અનુભવથી સમજી શકીએ છીએ. કોઈનું અપમાન ન કરવું તે પણ એક પ્રકારનો વિવેક છે. આદર. પ્રભુને આદર ગમે. એટલે આપણે બધાને આદર આપીએ, માન આપીએ, તે પ્રભુને ગમે. અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પ્રભુ ભક્તના સુખમાં સુખી અને દુઃખમાં દુઃખી છે. એટલે જો આપણે પ્રસન્ન નહીં હોઈએ ને તો આપણા પ્રભુને જરા પણ નહીં ગમે. એટલે જ આજે હું આ વિડીયો બનાવી રહી છું. કારણ કે અહીં કહ્યું છે કે પ્રભુ ભક્તના સુખમાં સુખી અને દુઃખમાં દુઃખી. આપણે ભક્ત નહીં પરંતુ દાસ તો છીએ ને. તો એક માલિકને પણ એના જે દાસ હોય તે દુઃખી હોય તે જોઈ શકતા નથી. તો આપણે પ્રભુના દાસ છીએ. જો આપણે દુઃખી હોઈશું તો આપણા પ્રભુ પણ દુઃખી થશે. માટે ક્યારે પણ દુઃખી રહેવું નહીં. અને મારે આપને એ કહેવાનું છે, મારે આપને એ કહેવાનું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ શ્રીનાથજીનું મુખારવિંદ છે અને વૈષ્ણવો છે એ શ્રી ઠાકોરજીનું મુખ છે. એ આપણે વચનામૃતમાં સાંભળતા હોઈએ છીએ. આપણે
વાર્તા પ્રસંગોમાં પણ આવે છે કે પ્રભુ આરોગ્ય કે નહીં તે આપણને વૈષ્ણવો દ્વારા ખબર પડે છે. એટલે વૈષ્ણવો મહાપ્રસાદ લઈને સરાહના કરે તો આપણે સમજીએ છીએ કે પ્રભુને આજે ખૂબ જ આનંદ આવ્યો સામગ્રી આરોગાવવામાં. એટલે પ્રભુ આપણી સાથે ફેસ ટુ ફેસ બોલે એવું જરૂરી નથી. આપણે પ્રભુની બોલી સમજવાની છે. એટલે પ્રભુ સંકેત દ્વારા કહે, ગુરુ દ્વારા કહેવડાવે, વૈષ્ણવ દ્વારા કહેવડાવે. પ્રભુ કોઈ પણ રીતે જતાવે અને પ્રભુને શું ગમે છે શું નથી ગમતું એ આપણે સમજવાનો છે. આ વાત કરવાનો મારો હેતુ એ છે કે હમણાં મને એવું લાગે છે કે પ્રભુ થોડા રિસાઈ ગયા છે. કારણ કે પ્રભુ કોઈ પણ રીતે જતાવતા નથી કે એને કયા પ્રકારનો સત્સંગ શ્રવણ કરવો છે. પ્રભુ વૈષ્ણવો દ્વારા કહેવડાવે છે. હમણાં આપ કોઈ પણ કોમેન્ટમાં પણ કહેતા નથી કે આપને શું સાંભળવું છે. અત્યારે મારી હાલત તો એવી છે કે નવી પરણેલી વહુ આવી હોય તેના જેવી. નવી પરણેલી વહુ ખૂબ જ પ્રયાસ કરે ઘરના બધા સભ્યોને ખુશ કરવાનો, પરંતુ ઘરની રીત એને ખબર ન હોય તો તે કઈ રીતે ખુશ કરી શકે. તે પોતાના કરતા બધા પ્રયત્ન કરે પરંતુ પછી થાકી હારી જાય કે મને અહીં કઈ ખબર પડતી જ નથી. અત્યારે મારી હાલત પણ એવી જ છે. મને એવું થાય છે કે એવું તે હું શું કરું કે આ બધા વૈષ્ણવોને આનંદ આવે. અંતરથી કઈ સ્ફૂર્ણા થઈ નથી રહી કે સત્સંગમાં શું શ્રવણ કરાવું, શેનો સત્સંગ કરીએ. એટલે પ્રભુના ચરણારવિંદમાં એ જ વિનંતી કરું છું કે વૈષ્ણવો દ્વારા આપ કહેવડાવો કે આપને કયા ગુણગાન શ્રવણ કરવાના છે. કારણ કે વસ્તુતઃ બધું કૃષ્ણ જ છે એ આપણે જાણીએ છીએ. પુષ્ટિ માર્ગના 5 તત્વો છે તે પણ આપણે જાણીએ છીએ. મૂળ તો એક જ છે, પરંતુ જેની જેમાં વધુ આસક્તિ. એટલે આપ જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો કે આપને સત્સંગમાં શું શ્રવણ કરવું છે. હું તો મારા બધા પ્રયત્નો અત્યારે કરી રહી છું. અને આજ તો મેં એવો પણ વિચાર કર્યો છે કે મારે સત્સંગમાં જે વિડીયો બનાવવા હોય તેના જે મેં ટોપિક લખેલા હોય એ ઠાકોરજી સન્મુખ ચિઠ્ઠી મૂકી અને આંખ બંધ કરીને એક ચિઠ્ઠી લઈ લઈશ. જો આપ કોમેન્ટમાં બોક્સમાં નહીં જણાવો ને તો કે પ્રભુને વિનંતી કરીશ કે હે પ્રભુ આપ જણાવો કે આપને કયા ગુણગાન શ્રવણ કરવા છે. કારણ કે એક્શનનું રિએક્શન જોઈએ જ. આપણે ઘરમાં રહેતા હોઈએ અને આપણા પતિ આપણી સાથે બોલે નહીં, એટલે કે હસે પણ નહીં અને ધૂતકારે પણ નહીં, એટલે ખીજાય પણ નહીં, તો આપણને એવું થાય કે એટલીસ્ટ તમે ભલે મને ખીજાઓ પણ કાંઈ તો કહો. કારણ કે એક્શન ને રિએક્શન જોઈએ. એટલે હું પણ આપને એ જ કહું છું કે આપને જે શ્રવણ કરવું હોય તે આપ જરૂરથી જણાવો. જો મને અનુકૂળતા હશે અને મારી પાસે એ સાહિત્ય બિરાજતું હશે તો હું જરૂરથી એ વિડીયો બનાવીશ. કારણ કે પ્રભુ આપને નિમિત્ત બનાવીને પણ શ્રવણ કરવા ઈચ્છતા હોય. માટે આપના મનોભાવો જરૂરથી જણાવજો. પ્રભુ નંદ કુમારો મેં સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રચિત શિક્ષાપત્રનું રસ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. ગયા પાઠમાં આપણે શ્રી સ્વામિનીજીની ભાવના જોઈ હતી. શિક્ષાપત્ર 12મો કે તેમાં સ્વામિનીજી કઈ રીતે જલ્પના કરે છે. હવે આ 13મા શિક્ષાપત્રમાં આપણે દીનતા કી ફલરૂપતા જોઈશું. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ શિક્ષાપત્ર 13મો દીનતા કી ફલરૂપતા. बड़े शिक्षापत्र 13
अब त्रयोदश शिक्षा पत्र में सर्वते चित्त को निवृत्त करी एक प्रभु चरित्र में निरुद्ध करी पूर्व शिक्षा पत्र में कहियो है तारीति सो भावना करनी यह निरूपण है। ऊपर कही आए या प्रकार विप्रयोग करे तो श्री स्वामिनी जी की कृपा ते भाव सिद्ध होय, परंतु यह काल महाकठिन है, सत्संग नहीं है, दुसंग बहुत है, सर्व की बुद्धि भ्रष्ट है इत्यादि विप्रयोग के बाधक दोष को विचारी विचारी दीनता करे तो प्रभु प्रसन्न होय, सो उपाय कहत है। कालह करालह समुपागतो अयम मतिम सताम द्राग हरत समस्ताम श्री वल्लभाचार्य समाश्रिताना यह काल कालह शरणम स एव च। शब्दार्थ, यह काल महाकराल आयो है, सो समस्त सत्पुरुषों की मति को शीघ्र हरण करे हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय करवे वाले को काल के काल रूप प्रभु ही शरण है। तासो जो श्रीमद आचार्य जी के शरण आए तिनको काल प्रतिबंध नहीं कर सकत है। टीका, यह काल महाकराल कठिन है, सो सत्पुरुष की मति को हरि लेत है तो और जीव की कहा गति है। ताते यह कलयुग ने अपने बल से सर्व जीव की बुद्धि हरि लीनी है। तहाँ कोई कहे जो कोई को छोड़ियो है, ऐसी शंका के समाधान में श्री हरिराय जी कहत है जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को आश्रय तन मन धन करी करत है तिनको काल नाही बाधक है, यानी तिनको काल बाधक नहीं है, प्रत्युत उनको सहायक है। सो थोड़े दिन में फल सिद्ध होइवे की रीति एकादश स्कंध में कही है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्धया यात्मना वा स्वतस्वभावात् करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत। शरीर ते वाणी ते मन ते वा इंद्रियं ते बुद्धि ते आत्मा ते अथवा अपने स्वभाव ते जो करे है सो नारायण के लिए अर्पण करे। या भांति श्री आचार्य जी द्वारा प्रभु को समर्प के पाछे निश्चिंत होए। श्री आचार्य जी महाप्रभु को आश्रय करी के रहे तिनको काल नहीं बाधक है। सो द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी कहे हैं, कलेर दोष निधे राजन नतस्तिह्ये को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। हे परीक्षित, दोष के निधि रूप कलयुग को एक बड़ो गुण है जो श्री कृष्ण के कीर्तन ते ही बंध मुक्त होय के पर को प्राप्त होय। यद्यपि हे राजन, कलयुग यह काल दोष को निधि है, परंतु एक या में महागुण है जो श्री कृष्ण के नाम को कीर्तन करत है, सो सर्व दोष ते छुटी के प्रभु को पावत है। ताते श्री आचार्य जी प्रकटित भाव जा वैष्णव को भयो तिनको यह कली परम सुंदर है। तिनको यह कली परम सुंदर है। न सेवा न कथा नैव भावनम नापि संशयः नित्यमुद्विग्न मनसा कथम कालः प्रयास्यति। जिनको सेवा नहीं, कथा नहीं, भगवान होना भावना होना ही भावन होना ही और साम्यक प्रकार सो आश्रय नहीं है, ऐसे इनको नित्य उद्विग्न मन करी के काल कैसे व्यतीत होइगो। फरी एक बार, जिनको सेवा नहीं, कथा नहीं, भावन हो नहीं और सम्यक प्रकार सो आश्रय नहीं है, ऐसे इनको नित्य उद्विग्न मन करी के काल कैसे व्यतीत होइगो। टीका, मुख्य पुष्टि मार्ग की रीति जो भगवत सेवा सो नहीं करत तथा श्री आचार्य जी के ग्रंथादिक की कथा सुनत ही भगवत धर्म हृदय में आवे, सो कथा हूँ नहीं सुनत। को अकेलो होय, द्रव्यादिक सहाय नहीं होय
अंग रोगी होए तासो भगवत सेवा न बने, और को भगवदीय के पास कथा सुने सो भगवदीय न मिले तो मन ही करी प्रभु के नाम अष्टाक्षर शरण मंत्र की भावना मन में विचारे। यह न बने तो लौकिक वैदिक सुख दुख सर्व छोड़ी एक श्री आचार्य जी के ही चरण कमल को आश्रय राखे, या भांति कबहु भगवत धर्म में मन न लगावे और देह संबंधी संसार अग्नि में यानी सुख दुख करके झरे अष्ट प्रहर सुख दुख में हाय हाय करे। तीन को यह काल बाध ही करे। तहाँ कोई कहे जो कली के दोष बहुत है सो सेवा और कथा ते कहाँ होई। तहाँ कहत है जो नवम स्कंध में दुर्वासा प्रति भगवान आपो कहे हैं, मत सेवया प्रतितम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छति सेवया पूर्णः कुतोन्यत काल विप्लुतम। मेरी सेवा करी के साक्षात प्राप्त भई ऐसी सालोक्यादिक चतुर्विध मुक्ति को हो मेरे भक्त इच्छा नहीं रखत है। काहे ते जो सेवा ते पूर्ण है सो कालादिक ते नष्ट होए, ऐसे राज्यादिक की इच्छा तो कैसे करे। यह वचन ते भगवान कहत हैं, जो जीव को मेरी सेवा ते प्रतीत प्राप्त, जो सालोक्य, दूसरा सामीप्य, तीसरा सायुज्य और चौथा सारूप्य, चारों मुक्ति सोहु नहीं इच्छित है, ऐसे सेवा करी पूर्ण है तीन को काल कहा करी सके। मेरे हूँ नहीं चलत है। और भगवान की कथा कैसी है, तस्मात् गोविंद महात्म्य मानंद रस सुंदरम शृणुयात् कीर्तनये नित्यम सकृतार्थो न संशय। तासो आनंद रस करी के सुंदर गोविंद को महात्म्य सुने और इनको कीर्तन करे सो कृतार्थ होए, वामे संशय नहीं। और द्वितीय स्कंध में राजा परीक्षित को वाक्य है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोतु शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। कर्ण रूप रंध्रते अपने भक्तन के भाव कलात्मक हृदय प्रति प्रविष्ट श्री कृष्ण मल को मिटाई देते हैं, शरद ऋतु जैसे जल के मल को मिटावे। यह वाक्य ते जो श्री ठाकुर जी की कथा रूप सुंदर अमृत को नित्य कर्ण द्वारा पान करत है सो कृतार्थ है। तिनके कर्ण रंध्र द्वारा श्री ठाकुर जी की कथा रूप अमृत हृदय में जात है। तिनके सगरे दोष हृदय ते दूरी होत है। कथा कहे सुने अनुवाद करे, यह तीनों जीव कृतार्थ होए। जैसे गंगा जल लाइवे सो लाइवे वारो तथा आसपास के सगरे पवित्र होए, तैसे कथा है ताते भगवत धर्म में मन होए। ताको यह काल बाधक नहीं है और सर्व को बाधक है। सत्संगो दुर्लभो दुष्ट संगः संचित नाद्रुते अनायासे न संसिद्धः का गतिर्मे भविष्यति। शब्दार्थ, सत्संग दुर्लभ है और दुसंग बिना विचारे श्रम बिना अच्छी तरह सो सिद्ध हुई है, सो मेरी कहाँ गति होएगी। टीका, सत्संग तो महादुर्लभ है, यह जीव तो स्वभाव करी के दुष्ट है। ताते दुष्ट संग बिना चिंतित ही आपते बिना जतन 10 दिशा ते आवत है, सो जीव को भगवत धर्म में लगन नहीं देत है। दुष्ट संग को गंध हो बाधक होत है, तो दशो दिशा ते दुसंग होए सो बाधक है। दशो दिशा ते दुसंग होए सो बाधक होए, या में कहा कहनो। सो श्री गुसाई जी विज्ञप्ति में कहे है, अहम कुरंगी द्रुगभंगी संगीनांगी कृतो अस्मियत अन्य संबंध गंधोपि गंधरामेव बाधते। झांसों में हरिणी के दृष्टि की सी चपल दृष्टि वाले ब्रज भक्तन के संगी श्री कृष्ण को अंगीकृत हो, तासो अन्य संबंध को गंध हूँ मेरी कंधरा को ही दुख दे है। यह भांति अन्य संबंध के गंध होते गरो कटे, ऐसी श्री प्रभु की आज्ञा है। और मेरे तो 10 दिशा ते दुष्ट संग बिना चिंतन आवत है,
सो मेरी अब कहा गति होनहार है, सो मोको जानी नहीं परत है। संग्राहयितुमखिलं तेहि क्रीडयितुमेव च शकलीकर्तुं मधुना प्रभोर्बाल चिकीर्षितम्। शब्दार्थ: समग्र चराचर वस्तु को संग्रह करवे को और इनके संग क्रीड़ा करवे को ही तथा अब सबन को भिन्न करवे को प्रभु की बाल क्रीड़ा करवे की इच्छा है, सो कौन जाने। टीका: ऊपर कहे जो दुसंग ते संसारी लोग अहंता ममता करी भरे हैं, तीन को ग्रहण करी पास राखी ऐसे खिलौना में क्रीडे तो संसारी ते अष्टप्रहर मिलाप है, सो मैं कहा करूं, जगत में ऐसे ही मनुष्य को मिलत है। सो हे प्रभु, आधुनिक जीव को तुम ही नचावत हो काष्ठ की पुत्रीवत। डोरी तुम्हारे हाथ है, सगरे यंत्र हैं, तुम यंत्री हो, जा भांति बजावत हो तैसे ही बाजत है। और तुम तो बालक की नाई क्रीड़ा करत हो, सहज में हम तथा सगरो जगत यह हमारा माया करी भ्रमत है। या भांति कही अब अपने ऊपर कृपा करवे को प्रार्थना दीनता सो करत है। हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीनाथ, दयानिधे, ब्रजनाथ, रमानाथ, नीचनाथ, जगतपते। शब्दार्थ: हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीजन के नाथ, दया के निधि, ब्रज के नाथ, लक्ष्मी के नाथ, अपने भक्तन के नाथ और जगत के पति, हमारी ऊपर दया करो, ऐसी प्रार्थना अष्ट श्लोक में है। तहाँ ताई समस्त संबोधन को संबंध है। टीका: हा नाथ, हमारे तुम नाथ हो, स्वामी हो, ताते तुम बिना हम और कौन सो सुख दुख है। अब यह संसार दुख नहीं सह्यो जात है, तुम अपने जानी दया करो। हाँ कृपानाथ, तुम आगे आगे ते अपने जीवन कर कृपा करत आए हो, सो अब हम पर कृपा ही करो। काहे ते जो तुम गोपीजन के नाथ हो, गोपीजन निसाधन है, तीन पर सदा कृपा करी सगरे कार्य सिद्ध किए, तैसे हम हो निसाधन है, हम पर कृपा करो। और तुम ब्रज के नाथ हो, कंस संबंधी अनेक दैत्य आए, तीन सबन को मारे, अग्निते, जलते, कालियते, विषते, सर्व प्रकार अपने ब्रज की रक्षा ही कीनी, तैसो हमारी रक्षा करो। लक्ष्मी नाथ हो, ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हो और अपने निज भक्तन के नाथ हो, भक्त प्रसन्न रहे, सुख पावे सोई करत हो। सो श्री भागवत नवम स्कंध में दुर्वासा प्रति भगवान कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एव द्विज, साधु भीरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। हे विप्र, परतंत्र होए तैसे मैं भक्तन के पराधीन हूँ और साधु मेरे भक्त हैं, तिन्हें मेरो हृदय ग्रहण करी लीनो है, तासो भक्तन ही प्रिय है, जिनको ऐसो मैं हूँ। मैं भक्तन के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। हे विप्र, भक्त जन्मों को बहुत प्रिय है, मैं भक्तन के हृदय में सदा रहत हूँ। यह भांति तुम अपने निज भक्तन के नाथ हो, ताते दया करो और जगत के पति हो। सगरे जगत में तुम ही करत हो, सोई होत है, ताते तुम कृपा करोगे, तब यह काल हमको निश्चय दुख नहीं देगो। गोकुलाधीश, गोपीश, व्रजाधीश, व्रजप्रिय, व्रजानंद, निजानंद, गोकुलानंद, गोप्रिय। हे गोकुल के अधीश, हे गोपिका के ईश, हे व्रज के अधीश, व्रज हे प्रियजन को ऐसे, व्रज है प्रियजन को ऐसे, हे व्रज के आनंद रूप, अथवा व्रज में है आनंद जिनको ऐसे, हे अपने भक्तन के आनंद रूप, हे गायन के
कुल को अथवा समस्त इंद्रियन को आनंद रूप। गाय हैं प्रिय जिनको ऐसे दया करो। टीका। हे श्री कृष्ण, तुम गोकुलाधीश गोकुल के राजा हो। सगले गोकुलवासी तुम ही करी शोभत है। गायन के रक्षक तुम ही हो, गोपीजन के ईश तुम ही हो, और सगरे व्रज के राजा तुम ही हो। व्रज तुमको प्रिय है, तुम व्रज को प्रिय हो। सो दशम स्कंध में ब्रह्मा जी ने कह्यो है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यन्नमित्रम परमानंदम। पूर्ण भाग्य देखो जिनके सदा आनंद रूप पूर्ण ब्रह्म मित्र है। यह वचन ते व्रज के जन नंद यशोदा गोप गोपी के परम भाग्य हो, जिनके मित्र श्री कृष्ण परमानंद रूप है। सगले व्रज के आनंद आता है और निज भक्तन को हो अपनो आनंद दान करत है। गायन के कुल तिनको आनंद आता है, काहे ते जो गाय आपको बहुत प्रिय है। सो भगवदीय गाय हैं। आगे गाय पाछे गाय, ईत गाय ऊत गाय, गोविंद को गायन में रही वो ही भावे रे। ऐसी गाय प्रिय है, ऐसे श्री कृष्ण हम ऊपर कृपा करें। हा कृष्ण दया सिंधो, हा राधावर सुंदर, दिनेशु सततम श्रीमन्निजाचार्य श्रितेषु च, दुष्टेषु दोषपुष्टेषु भाग्यरुष्टेषु मत प्रभु, निसाधनेषु मतिषु दयां कुरु दयां कुरु। हाँ कृष्ण, हाँ दया के समुद्र, हाँ श्री स्वामिनी जी के वर, हाँ सुंदर दीन और श्री निजाचार्य के चरण के आश्रित, दुष्ट दोष से पुष्ट भय, भाग्यहीन और साधन रहित तथा श्री आचार्य जी के आश्रय ते उत्कृष्ट मति वाले भक्तन के ऊपर हे हमारे प्रभु दया करो दया करो। टीका। हाँ कृष्ण, तुम निसाधन फलात्मक हो, सो हम पर कृपा करो, और तुम तो कृपा करो ही गे, यह निश्चय है। परंतु हमको धीरज नहीं रहत है, ताते विज्ञप्ति करत है। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे है, अम्बुदस्य स्वभावोऽयं समये वारी मुञ्चते, तथापि चातकः खिन्नो रटत्येव न संशयः। मेघ को यह स्वभाव है, जो समय भये जल छोड़े। तू खेद युक्त चातक है, सो रटन करियो ही करत है, या में संशय नहीं है। मेघ को स्वभाव है, स्वाति नक्षत्र में बरस के समय आए जलदान करत है, परंतु चातक अपनी रटना वर्ष दिन लो रटी बोई करे। तैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तन पर निश्चय कृपा करेंगे, परंतु भक्तन को आरती ही कर्तव्य है। हे दया सिंधो, अब तुम बेगी ही दया करो, काहे ते जो तुम दया करो तो सगरो अनुकूल होय, माया बाधक न होय, और तुम जहाँ ताई दया में ढील करत हो, तहाँ ताई माया करी हम दुख पावत है। सो श्री गुसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, नाथे अनुकूलताम याते सर्वयांत्य नुकुलात्कुलताम, तरीन मस्त द्विपरीते तो सर्वमेव भवेत तथा। स्वामी अनुकूल होय तो सर्व अनुकूल होय, और यह विपरीत होय तो सब तैसे ही विपरीत होय। हे नाथ, तुम्हारे अनुकूल ते सर्व अनुकूल है, तुम्हारे विपरीत ते सर्व जगत में विपरीत भयो है, ताते तुम बेगी दया करो। અહીં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી વારંવાર શ્રી ગુસાઈજી રચિત વિજ્ઞપ્તિની વાત કરે છે કે જે નવ વિજ્ઞપ્તિ શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીજી બાબાના વિરહમાં લખેલી છે, એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીએ લખેલા તે પત્રો છે। જો આપને તે પત્રો જોઈતા હોય તો ગુસાઈજીની વિજ્ઞપ્તિ ફક્ત ભાવાર્થવાળી અને વિથ લિરિક્સ વાળી બંને પ્રકારની વિજ્ઞપ્તિ આપને મળી જશે। આપને અમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપીશું, અને જો ભૂલાઈ જાય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો।
तुम स्वामिनी जी के वर हो, परम सुंदर हो और हम बहुत दीन दुखी हैं। ताते कृपा करो तो भली है। मेरे दोष देखी के कृपा में ढील करत हो, परंतु निरंतर अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कानी करी के कृपा करो। या भांति दीनता करत करत अपने दोष की स्फूर्ति होय। प्रथम विरह करे प्रभु के लीला संबंधी नाम कहे, ता करी अति दीनता और अपने दोष की स्फूर्ति होय। मैं बड़ो दुष्ट हूँ, अपार अनेक भांति के कायिक, मानसिक, वाचनिक ऐसी अपार दुष्टता करे दुष्ट हूँ। भाग्य में भगवत धर्म नहीं लिखियो है, बुद्धि गई है शून्य हूँ। हे मेरे प्रभु, इतनो भरोसो है जो तुम मेरे प्रभु हो, मैं निसाधन हूँ। मोते साधन एक हूँ नहीं बनत है, ऐसो जो मैं तीन पर बेगी ही दया करो। मेरे दोष मती देखो। कोई कहे जो प्रभु है, दोष क्यों न देखे, गुण दोष होए सो देखे चाहिए। या भांति कहे तहाँ श्री गोसाई जी ने विज्ञप्ति में कहियो है। बलिष्ठा अति मदोशास्तवत् कृपाग्रे अति दुर्बलाः तस्या ईश्वर धर्मत्वा दोषाणां जीव धर्मतः अपराधेपि गणना नैव कार्याव्रजाधिप सहजैश्वर्य भावेन स्वस्य क्षुद्रतया च नः। मेरे दोष बलिष्ठ है तो हूँ आपकी कृपा के पास अति दुर्बल है। कहते काहेते जो कृपा है सो ईश्वर को धर्म है और दोषन को जीव धर्मत्व है। हमारी तुच्छता ते जो अपराध होय तामे आपके सहज ऐश्वर्य भाव करे के हे व्रज के अधीप गणना नहीं कर्तव्य है। यद्यपि मेरे दोष बहुत बलिष्ठ हैं, तो हूँ तुम्हारी कृपा के आगे दुर्बल है। तुम्हारी कृपा ईश्वर धर्म रूप है, ताके पास दोष जीव धर्म है। सो कहाँ ताई रहेगो, ताते कृपा करो। और तुम व्रज के अधिपति हो, निसाधन फलात्मक हो, ताते हमारे अपराध है, तिनकी गणना करनी तुम्हारे उचित नहीं है। कहते जो सहजी में तुम्हारो ऐसा ऐश्वर्य है, जो यह दोष महाक्षुद्र है। सो कहा है पुत्र के भावते अजामिल ने नारायण नाम लियो, सो काल के बंधन ते छूटियो। तुम तो श्री कृष्ण दयालु हो। सो जीव के दोष देखत ही नहीं, ताते हम पर कृपा करो। निवर्त्य सर्वतश्चेतो निरुद्धय चरिते हरेः रुदिकृत्य कृपावश्यम स्थियताम सज्जनैः सह। चित्त को सर्वलौकिक ते निवृत्त करी के हरि चरित्र में निरुद्ध करी के प्रभु की कृपा के वश्य जो निरोध है, ताको हृदय में स्थापित करी के सज्जन पुष्टि मार्गीय भक्त के संग रहन। टीका। हे श्री कृष्ण, यह संसार में देह संबंधी अहंता ममता करी मेरो चित्त फंसी रहियो है, ताको यह संसार ते निवृत्त करो, सर्व और ते निरोध करी अपने में लगाओ। जैसे व्रज भक्तन को चित्त दही दूध माखन इत्यादि में हतो, ताकि चोरी करी अनेक लीला करी अपने में लगायो, तैसे ही हमारो मन को निरोध करी अपने में लगाओ। अपने हृदय में विचारो, जो यह हमारे हैं ऐसे जानी अवश्य कृपा कर्तव्य है। अपने सज्जन के हृदय में सदा स्थित हो, सो हम पर कृपा करो। अदृष्ट दुखित मुखो अनुभूत सुखे तरह स्वदुखिता ति करुणः सकृष्णः शरणं मम। शब्दार्थ ऊपर श्लोक में कहे ता प्रकार चित्त को निरुद्ध करे के भक्तन के संग रहे के शरण की भावना करने। सो दो श्लोक ते निरूपण करत है, जिनने दुख युक्त भक्तन को मुख नहीं देखियो है, दुख को अनुभव नहीं कियो है, ऐसे और अपने दुखी तन के ऊपर अति दया युक्त ऐसे श्री कृष्ण मेरो शरण यानी आश्रय स्थान है। टीका। हे श्री कृष्ण, तुम अपने भक्त जो दुख क्लेश करी पीड़ित होए सो नहीं देखी सकत हो, भक्त प्रसन्न रहे सो तुमको भावत है,
भक्त दुखित होय, म्लान सुख होय, सो तुम नहीं देखी सकत हो। कहते जो सर्व प्राणी मात्र के तुम सुखदाता हो, सो भक्तन को दुख कैसे देखोगे। यह विचारी के हमको बड़ी चिंता होई है। जो भक्तन को क्लेश सहन लागे, जो भक्तन को क्लेश सहन लागे, सो विज्ञप्ति में श्री गुसाई जी कहत है, जानामि मंद भाग्यो अहम यदर्थे गोकुलेश्वर। भक्त क्लेशा सहिष्णुत्व स्वभावम कुरुते अन्यथा। मैं मंद भाग्यवार हूँ, ऐसो जानू हूँ, जाके लिए गोकुल के ईश्वर श्री कृष्ण भक्त के क्लेश को नहीं सही सके है, नहीं सही सके, ऐसे अपने स्वभाव को अन्यथा करत है। मैं यह जानत हूँ जो मेरे अब मंद भाग्य है। हे गोकुलेश्वर, तुम भक्त क्लेश कबहू नहीं सहत, सो स्वभाव मेरे लिए फेरे अब सहत हो, तो मैं कहा करूं। सर्वभूत प्राणी मात्र के तुम ही सुखदाता हो, और अपने निज भक्त को दुखित देखी के अत्यंत करुणा ही करत हो। ऐसे भक्तन के करुणा सिंधु श्री कृष्ण मेरे शरण हो। ऐसे शरण की भावना ही करत हो, और कहा करी सको। अमंत परमानंदो निजानंदाश्रय स्थितः, स्वरूपानंद दाता च स कृष्ण शरणम मम। शब्दार्थ, अधिक उत्तम आनंद रूप और अपने आनंद के आश्रय रूप श्रीमद आचार्य जी अथवा व्रज भक्त आदि तीन में स्थित और रसात्मक स्वरूप के आनंद देवे वाले सो श्री कृष्ण मेरो शरण यानी आश्रय स्थान है। टीका, हे श्री कृष्ण, तुम बहुत आनंद करे पूरित हो, परमानंद रूपी हो, तुम अपने निज भक्तन के आनंद दाता हो, जो को तुम्हारे आश्रय करी के रहे हैं, तीन के आश्रय रूप आप ही हो, तीन को स्वरूपानंद को दान करत हो। दशम स्कंद में श्री नंदराय जी उद्धव जी प्रति कहे हैं, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः वाचो भिद्यायि निनाम्नाम कायस्तत्व प्रवणादिषु। हमारे मन की वृत्ति श्री कृष्ण के चरणारविंद को है, आश्रय जिनको ऐसी हो और वाणी इनके नाम को उच्चार करवे वाली तथा शरीर इनको दंडवत प्रणाम आदि में हो, मन वचन काया करी श्री कृष्ण के पदाम्बुज को आश्रय है, तीन को और कार्य कछु नहीं कर्तव्य है, सब सिद्ध भयो। ताते जा भक्त ने तुम्हारो आश्रय कियो है, तीन को स्वरूपानंद के दाता हो। ऐसे जो श्री कृष्ण सो मेरे शरण यानी आश्रय स्थान हो, सो नवरत्न में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। तासो निरंतर सर्वात्म करी के श्री कृष्ण मेरे शरण है, नित्य श्री कृष्ण की शरण भावना कर्तव्य है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्म को छोड़ी के एक मो को शरण हो, मैं तो को सर्व पापन ते छुड़ाऊंगो, शोक मति कर इत्यादि अनेक वचन है। ताते हे श्री कृष्ण, मोते कछु धर्म नहीं बनी आवत, एक तुम्हारी शरण की भावना किए ते फल सिद्धि होय, ऐसे जानी सो ही करत हूँ। इति श्री हरिराय जी कृतम त्रयोदशम शिक्षापत्र श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रज भाषा टीका समेतम। આ રીતે 13મું શિક્ષાપત્ર અહીં વિરામ લે છે। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો, અને આવો રત્નરૂપી આવો મહામૂલ્ય શિક્ષાપત્ર ગ્રંથ બીજા વૈષ્ણવ સુધી પણ પહોંચાડશો, કે જેને કારણે બધાને આ સુલભ થાય। જય શ્રી કૃષ્ણ। ચિંતા સંતાન હંતારો यत्पादाम्बुजरेणवा स्वीयानं तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनु
अनुग्रहतो जंतो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। આજે આપણે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રચિત શિક્ષાપત્રનું રસદર્શન કરીશું। તેમાં આપણે શિક્ષાપત્ર 33મો નિસાધનતા વિશે જોઈશું। अब त्रयस्त्रिंशतम शिक्षापत्र में यह मार्ग में सर्व को कारण भगवत इच्छा ही है। सो ही प्रतिकूल होय ताको नाश हरि में दैन्यते होय। काहे ते जो दिनजन ऊपर हरि अपनी इच्छा अनुकूल करत है। जब इच्छा अनुकूल भई तब दास को कहा दुर्लभ है। ताते लोक में हो दिन के ऊपर सबन को दया होत है। यह जानी के दैन्य राखनो सो ही साधन है। अभिमान और मद दैन्य के विरोधी है। ताको त्याग करनो। यह न बने तो अपने श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को दृढ़ आश्रय रखने और इनके निबंध श्री सुबोधिनी जी और षोडश ग्रंथ को अवलोकन करनो तथा दुसंग ते दूरी रहनो। ता करी के सगरे दोष निवृत्त होय। यह निरूपण है। ऊपर विद्या अविद्या के प्रकार कहे सो ब्रज भक्तन को हो प्रभु ने ही अविद्या की निवृत्ति करी। विद्या सिद्ध किए तब भये भक्तन को सामर्थ्य नहीं है। प्रभु ही सामर्थ्य दियो तब रास पंचाध्यायी में सगरे प्रतिबंध को तोड़ी के प्रभु पास आए। अनुभव भयो तैसे ही यहाँ पुष्टि मार्ग में जब प्रभु कृपा करे तब ही फल होय। सो आगे कहत है अस्मिन् मार्गे प्रभोरिच्छा मात्रम सर्वत्र कारणम सैव चावरणम यावत् प्रतिकूला फले नीचे। शब्दार्थ यह पुष्टि मार्ग में सर्व कार्य में मात्र प्रभु की इच्छा कारण है। सो ही जब ताई अपने फल में प्रतिकूल होय सो आवरण है। टीका हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण की इच्छा ही सर्व कार्य में कारण है। सो इच्छा जब ताई प्रतिकूल है अपनो फल देवे में विलंब की इच्छा है तब ताई आवरण है। ताते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को वर्ण होय तथा हीन जाति म्लेच्छ चांडाल मला इत्यादि होय सर्व धर्म करी रहित होय तिनको फल देवे की इच्छा होय तो ऐसे हुई यह पुष्टि मार्ग में शरण आवे और फल को निश्चय पावे। और जहाँ को फल देवे में प्रतिकूल इच्छा है सो यह पुष्टि मार्ग के धर्म करी रहित होय तिनको फल नहीं होय। ताते प्रभु की इच्छा ही मुख्य है। सो वार्ता में प्रसिद्ध है जो अली खान और अली खान की बेटी भगवान की इच्छा थे चाचा हरिवंश जी द्वारा श्री गुसाई जी की शरण आई। ताते यह मार्ग में श्री कृष्ण की इच्छा परम कारण है। तदावरण नाशस्तु दैन्यादेव हरो कृतात् स दिनेशो निजामिच्छाम अनुकूलाम करोति ही। शब्दार्थ यह आवरण को नाश हरि में दैन्य किए ते ही होय। कहे ते जो वह भगवान दिन में अपनी इच्छा प्रतिकूल होय तो हु फिर अनुकूल करत है। टीका हरि सो जब दीनता होय तब आवरण को नाश होय। भगवान को संबंधी भयो तासो भगवत सेवा में अंगीकार भयो। दीनता करी दास भाव हो भयो तब प्रभु की इच्छा आपो ही ते अनुकूल होय। जो अब तो यह जीव मेरो ही भयो तासो छोड़ियो न जाए तब प्रभु अनुकूल भय तब सब सिद्ध होय। और आगे कहत है तदानुकूल्ये दासानां किं फलम दुर्लभम मतम
कृपा च जायते दीने लोक सिद्ध निदर्शनात्। शब्दार्थ: भगवान की इच्छा अनुकूल भई तब दासन को कहा फल दुर्लभ है, कछुहु नाही। काहे ते जो दिन पे कृपा होय ऐसे लोक में दिखे है। तासो दिन होय तो प्रभु की कृपा होय। टीका: जब प्रभु की इच्छा अनुकूल भई तब सगरो फल सिद्ध भयो, या में संदेह नहीं है। ताते श्री कृष्ण की कृपा को कारण एक दैन्य है। सो लौकिक में कहूँ प्रसिद्ध देखियत है, जो कैसो हो वैरी हो, कैसो हो काम बिगाड़े, परंतु आय के शरण पड़े। जो मैं तो तुम्हारो हूँ, अब चाहो सो करो, तब उह पर कृपा ही करे, मारियो न जाए। तैसे अनेक जन्म ते जीव भूल्यो है। सो श्री आचार्य जी द्वारा प्रभु को सर्व समर्पण करी के दीन होई रहे। जो मैं श्री कृष्ण को दास हूँ, तब प्रभु प्रसन्न होय, कृपा ही करे। ताते दीन होय एक श्री कृष्ण की शरण भावना राखे। सो श्री भागवत एकादश स्कंध में पिंगला को वाक्य है, संसार कूपे पतितम विषयैर्मुषिते क्षणम ग्रस्तम कालाहीना आत्मानम कोन्यस्त्रातु मधीश्वरः। संसार रूप कूप में गिरियो और विषय करे के मुंद गए हैं नेत्र जिनके। ऐसे और काल रूप सर्प ने निगलिए ऐसे आत्मा को, और अन्य कौन रक्षा करवे में समर्थ है। और पुरूरवा ने कहियो, पुंश्चल्या पहृतम चित्तम कोन्यो मोचयितुम क्षमः। फरी एक बार, पुंश्चल्या पहृतम चित्तम कोन्यो मोचयितुम क्षमः। आत्मा रामेश्वर मृते भगवंत मधोक्षजम। पुंश्चली यानी व्यभिचारिणी स्त्री ने हरि लिए ऐसे चित्त को आत्माराम यानी योगी के ईश्वर अधोक्षज भगवान बिना और अन्य कौन छुड़ावे में समर्थ है। और व्यास जी कहे हैं, घोरे कलयुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते वासुदेव परामर्श्यास्ते कृतार्थान संशयः। सर्वधर्म करी रहित घोर कलयुग प्राप्त भयो, तामे भगवत परायण मनुष्य कृतार्थ है। संशय नाही। या भांति पिंगला, पुरूरवादी और द्रौपदी, गजेंद्र जो आरती करे शरण आए, तीन सबन को उद्धार प्रभु किए। ताते एक प्रभु के आश्रय ते और दैन्यते ही प्रभु की कृपा होत है। अतो दैन्यम ही मार्गेस्मिन परम साधनम मतम अभिमानो मदश्चापि सततम तद्विरोधिनो तो विज्ञान प्रयत्नेन परित्याज्यो फलार्थिभिः दोष्ट्र्यम समस्तेन्द्रियाणां साधनैरेव नाशयेत्। शब्दार्थ: तासो यह पुष्टि मार्ग में दैन्य ही परम साधन मान्यो है। अभिमान और मद यह दोनों निरंतर दैन्य के विरोधी है। इनको जानी के पुष्टि मार्गीय फल के अर्थवारे के यत्न करी के त्याग करवे योग्य है, और समग्र इंद्रियन की दुष्टता को साधन करी के ही नाश करे हैं। टीका: पुष्टि मार्ग में परम साधन एक दैन्य है। दैन्य भावना करण अर्थ सर्व समर्पण है। ताते जाको दीनता सिद्ध भई तिनको यह पुष्टि मार्ग को फल सिद्ध ही भयो। ताते विज्ञप्ति में श्री गुसाई जी कहे हैं, यादृशी तादृशी नाथ त्वत्पादाब्जैक किंकरी तद्वक्त्रम कथमप्याशु कुरु द्रगोचरम मम। जैसी तैसी तुम्हारे चरण कमल की किंकरी यानी दासी हूँ, ताते अपनी जानी कृपा करी मेरे नेत्र को आपके मुख को वेगी ही दर्शन कराओ। और श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, दैन्य त्वत्तोष साधनम, या भांति दैन्य सर्वोपरि साधन है। अभिमान और मद यह दो पुष्टि मार्ग के फल में विरोधी है। ताहिते श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय में कहे हैं, अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्याधीनत्व भावना। स्वामी आधीन हूँ ऐसी भावना ते अभिमान सगरो छोड़नो,
जो स्वतंत्र होय सोय अभिमान करे। दास को नाही कर्तव्य है, स्वामी की आज्ञा मांगी सगरो कार्य कर्तव्य है। सो अभिमान ते दासपनो जात रहे, ताते अभिमान बड़ो बाधक है, तैसो ही मदहु बाधक है। पुष्टि मार्ग के फल में विरोधी है। लौकिक सुख ते सगरे अलौकिक साधन को नाश होत है, तासो इंद्रिय दुष्ट होत है। तिनको अलौकिक में लगावे तब दुष्टता मीटे। सो निरोध लक्षण में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, संसार आवेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वे कृष्णस्य सर्व वस्तु निभुम्न ईशस्य योजयेत। संसार के आवेश करी दुष्ट सब इंद्रियन के हित के लिए अपने स्वामी श्री कृष्ण की सर्व वस्तु है सो उनमें लगावे, तासो इंद्रियन की दुष्टता निवृत्त होय। सगरी इंद्रियन की आसक्ति लौकिक पे होय सो दुष्टता जानिए, प्रभु में आसक्ति सो यह दुष्टता मीटे। अथवा श्रय मात्रेण नाशयिष्यति मत् प्रभुः निजाचार्याश्रितानां तु दोषावहनि स्वरूपतः संबंध मात्रतो भस्मीभवन्ति क्षण मात्रतः। शब्दार्थ ऊपर कहे जो इंद्रियन की दुष्टता साधन करी निवृत्त करे, परंतु जैसे न हो सके तो अपने स्वामी को आश्रय दृढ़ करनो, ता आश्रय मात्र ते अपने स्वामी सर्व दोष को नाश करेंगे। काहे ते जो अपने श्री आचार्य जी के दृढ़ आश्रय वारेन के। दोष तो अग्नि स्वरूप सो श्री आचार्य जी अग्नि स्वरूप है, तासो संबंध मात्र ते क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। टीका दृढ़ आश्रय राखनो अन्याश्रय ते फल को नाश होय। सो दामोदर दास संभरवारे की वार्ता में प्रसिद्ध है, जो वाकी स्त्री ने रंचकु अन्याश्रय कियो ताते पुत्र म्लेच्छ भयो, ऐसो बाधक है। सो श्री गुसाई जी कहे हैं, अहम कुरंगी द्रगभंगी संगीनांगी कृतास्मि यत् अन्य संबंध गंधोपि कंधरामेव बाधते। अन्य संबंध को गंध होय तो गरो कटे यानी गला कटे, प्रभु सो अन्याश्रय सहयो न जाए। श्री नंदराय जी अंबिका पूजन को गए, तहाँ सुदर्शन सर्प नंदराय जी को निगल गयो। फिर प्रभु की शरण जाए प्रार्थना करी, तब छूटे, ताते अन्याश्रय महाबाधक है। ताते श्री आचार्य जी के आश्रितन को अग्नि के संबंध ते काष्ठ की नाई अग्नि रूप श्री आचार्य जी के संबंध ते सगरे दोष एक क्षण में भस्म हो जाए। अतः स्वाचार्य मात्रेक शरणे तत्पराश्रिते ही तदग्रंथार्थावबोधार्थ विहिताप्ति प्रयत्न के ही दुसंग वर्जिते ही संग संप्राप्त्याशायुतेरपि स्थेयं सेवा परेरन्याश्रयन त्याग विचक्षणे ही काम लोभादि दोषैक परित्यागे चुभिः सदा। शब्दार्थ तासो अपने श्री आचार्य जी के ही आश्रय वारे, इनके परायण भगवदीय के आश्रित, इनके ग्रंथ श्री सुबोधिनी जी निबंध आदि के अर्थ जानने के लिए प्रयत्न करवे वारे, दुसंग ते रहित, सत्संग की प्राप्ति की आशा युक्त, सेवा में चतुर, अन्याश्रय के त्याग में चतुर, काम लोभ आदि मुख्य दोष के त्याग की इच्छा वाले, ऐसे होय सदा रहना। टीका श्री आचार्य जी के चरण कमल को दृढ़ आश्रय करे। श्री आचार्य जी के चरण कमल के आश्रित भगवदीय होय तीन को आश्रय करे। पुष्टि मार्गीय ग्रंथ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी आदि के, श्री सुबोधिनी जी निबंध, विद्वान मंडन, टिप्पणी जी, श्री सर्वोत्तम जी आदि ग्रंथ है। इनके भाव को बोध भये ते आश्रय सिद्ध होय। અહીં આપણને સમજાવ્યું છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ કમલનો દ્રઢ આશ્રય કઈ રીતે થાય, તો તેમાં કહે છે કે પુષ્ટિ માર્ગીય ગ્રંથ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી આદि के श्री सुबोधिनीजी निबंध, विद्वान मंडन, टिप्पणी जी, श्री सर्वोत्तम जी आदि ग्रंथ है। इनके भाव को बोध भये ते એટલે આ બધા ગ્રંથો આપણને હૃદયારૂઢ થાય ત્યારે આશ્રય સિદ્ધ થાય। सो सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गुसाईजी कहे हैं, कृष्णाधरामृतास्वाद सिद्धि रत्र न संशय। श्री कृष्ण के अधरामृत को पान निश्चय करत है, या में संशय नहीं। ताते सर्वोत्तम आदि सगरे ग्रंथ को पाठ अवश्य कर्तव्य है। ता करी सर्व सुबोध होय, दैन्य होय और आश्रय सिद्ध होय। अब दुसंग को त्याग करना,
सत्संग की प्राप्ति को यत्न करनो। ताते श्री भागवत प्रथम स्कंध में शौनक कहे है, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम नापुर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवान के संगी भक्तन के लव मात्र के संग तुल्य न स्वर्ग को कि न मोक्ष को हम तुलना करे हैं, तो मनुष्यन को सुख तो कहा, या भांति सत्संग तुल्य और सुख नहीं है। ताते सत्संग करे तो सर्व सिद्ध होए, श्री कृष्ण की सेवा में स्थित रहे। क्यों? जो यह पुष्टि मार्ग में परम फल स्वरूप भगवत सेवा ही है, सेवा समान और कछु नहीं है। सो श्री भागवत नवम स्कंध में श्री भगवान दुर्वासा प्रति कहे हैं, मत सेवया प्रतितम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत काल विप्लुतम। मेरी सेवा ते साक्षात्कार भये ऐसे सालोक्य आदि चतुर्विध मोक्ष को हूँ मेरे भक्त नहीं इच्छत है। काहे ते तो सेवा करी पूर्ण है, तो काल करी जिनको नाश होए, ताकि इच्छा नहीं राखे। वामे कहा कहनो, ऐसे भगवदीय सेवा में पूर्ण है, जो चतुर्विध मुक्ति पर्यंत नहीं चाहत है। या भांति श्री कृष्ण की सेवा में स्थित होए और अन्याश्रय न करे। देवता आदि को द्रव्यादि के लिए रंचक हूँ आश्रय होए, तो फल को नाश होए। ताते अन्याश्रय छोड़वे में विचक्षण रहनो और कामादि विषय को तथा लोभ को त्याग करे। काहे ते जो कामादि विषय में तत्पर रहवे ते श्री ठाकुर जी को आवेश हृदय में न होय, हृदय में ते पधारे और लोभ करे संसार आसक्ति होय, पाप पुण्य को विचार न रहे, केवल अपने स्वार्थ के ही वश्य होय। ऐसे लोभी तथा कामी के हृदय में प्रभु न आवे। ताते काम तथा लोभ को सदा त्याग करे, तब फल रूप दैन्य सिद्ध होय। इति श्री हरिराय जी कृतम त्रयस्त्रिंशतम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रज भाषा टीका समेतम। आ रीते श्री हरिराय महाप्रभुजी रचित शिक्षापत्र 33 નિસાધનતા અહીં વિરમે છે। આપણે સમજ્યા કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણોનો દ્રઢાશ્રય કરવા, શ્રી સર્વોત્તમ નો ને હૃદયારૂઢ કરવું જોઈએ, જેના કારણે કૃષ્ણ અધરામૃતની પ્રાપ્તિ થાય। પુષ્ટિ માર્ગના ગ્રંથો 16 ગ્રંથો તે બધા સૌપ્રથમ આપણને હૃદયારૂઢ થવા જોઈએ, તેના કારણે આપણામાં નિસાધનતા આવે। આપણે વૈષ્ણવોના પ્રસંગોમાંથી બોધપાઠ લઈને નિસાધનતા સમજી શકીએ। માટે જરૂરથી આ બધા સ્તોત્રો અને પુસ્તકોનો આશ્રય કરવો, જેના કારણે નિસાધનતા આવે। આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ। પ્રભુ નંદ કુમારો में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। આજે આપણે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રચિત શિક્ષાપત્ર 37મો નિસાધનતા ભાવના પ્રકાર વિશે જોઈશું। बड़े शिक्षापत्र 37। अब 37 शिक्षापत्र में अहर्निश अपनी निसाधनता की भावना करनी यह निरूपण है। ऊपर कहे ता प्रमाण चिंता न करनी, और अब निसाधन होय तब फल प्राप्ति होय। सो निसाधनता की भावना को प्रकार निरूपण करत है। न शुद्ध भावो नैवास्ति सर्व भावो न दीनता नाज्ञा परत्वम विश्वासो चास्ति परमादरः। शब्दार्थ, शुद्ध भाव नहीं है, सर्वात्म भाव नहीं है, दीनता नहीं है, श्री आचार्य जी में तत्परता नहीं है, यह पुष्टि मार्ग में विश्वास नहीं है और प्रभु में आदर नहीं है। ऐसे साधन रहित मैं हूँ, सो प्रभु कहा करेंगे ऐसी भावना करे। टीका। अब श्री हरिराय जी कहत है, या भांति निसाधन जीव होय
तो प्रभु निश्चय फलदान करे। सो मेरे में निसाधनता नहीं है। प्रथम तो शुद्ध भाव होय तब प्रभु कृपा करे। सो शुद्ध भाव नहीं है। मन में कपट, छल, ईर्ष्या इत्यादि भरी रहियो है। ताते श्री कृष्ण में शुद्ध भाव नहीं है और सर्व भाव हो प्रभु में नहीं है। जो श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी में कहे हैं, सर्वदा सर्व भावेन भजनीयो व्रजाधिपः। सर्वदा सर्व भाव करी व्रज के अधिप श्री कृष्ण भजन करवे योग्य है। ऐसे व्रज के अधिपति श्री कृष्ण है, तिनको भजन यानी सेवा सदा ही सर्व भाव करी के कर्तव्य है। सो मोसो नहीं बनत, देह सो करत होय तो इंद्रिय मन नहीं लगत। मन में विचार होत है परंतु देह ते नहीं बनत है। प्रभु अपना मन ની બધી વાત કરે છે। मन वचन कर्म सर्व भाव सो नहीं होत है। भलो और कछु न बने तो दीनता करे, ताते प्रभु प्रसन्न होय। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे है, आचार्य चरणे रुक्तम दैन्यम त्वत्तोष साधनम। हमारे आचार्य जी महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी आदि में कहे हैं, जो प्रभु प्रसन्न करवे को साधन एक दैन्य ही है। सो दैन्य मेरे में नहीं है। और जहाँ प्रकार श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की आज्ञा शास्त्र में है, सो बने तो हूँ प्रभु प्रसन्न होय। सो पुष्टि मार्ग की रीति है, ता अनुसार आज्ञा पालन हो मोह में नहीं है। और या पुष्टि मार्ग में चातक पक्षी की नाय विश्वास राखे सो सर्वोपरि है। विश्वास बिना कछु सिद्धि नहीं है। सो मोह में विश्वासो नहीं है और प्रभु में आदर नहीं है। आदर यानी परम प्रीति होय तो प्रभु बिना और ठोर मन लगे। सो प्रभु में आदर हो नहीं है। न सत्संगो नैव सेवा न निवेदन संस्मृति ही नाश्रयो न विवेको ही धैर्यम न शरण स्थिति ही। शब्दार्थ, सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, निवेदन की सुंदर स्मृति नहीं है, आश्रय नहीं है, विवेक नहीं है, धैर्य तथा शरण में स्थिति यानी दृढ़ आश्रय नहीं है। टीका, और साधन न होय परंतु सत्संग होय तो ता करी पुष्टि मार्ग के फल को अनुभव होय। सो मोको पुष्टि मार्ग को सत्संग हो नहीं है। सत्संग ते अष्टप्रहर भगवत सेवा में मन लगे तो फल रूप मानसी सेवा सिद्ध होय। सो मेरे में तो तनुजावित जाहु नहीं बनत है, तहाँ मानसी परम दुर्लभ है। यह मार्ग में तो सेवा ही मुख्य है। जैसे ब्राह्मण गायत्री न पढ़े तो ब्रह्मत्व जाए, तैसे ही वैष्णव सेवा न करे तो वैष्णवता जाए। सो मेरे में सेवा हो नहीं है। और निवेदन को अनुसंधान यह पुष्टि मार्ग में सर्वथा चाहिए। सो नवरत्न में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जनहि। निवेदन तो तादृशीय भगवदीय जन के संग निश्चय स्मरण करवे योग्य है। सोमो को न तादृश्य को संग है और न निवेदन की स्मृति है। एक प्रभु को आश्रय मन में राखे यह परम साधन है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय में कहे हैं, अशक्य हरि रेवास्ति सर्वमाश्रय तो भवेत। अशक्य में हरि ही सर्व है, तासो सर्व आश्रय ते सिद्ध होय। या भांति एक श्री कृष्ण हूँ को आश्रय नहीं है, विवेक चाहिए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में कहे हैं, विवेकस्तु हरि ही सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। हरि भगवान अपनी तथा अपने भक्तन की इच्छा सु सर्व करेंगे, यह समझनो सो विवेक। मन में विचार होय जो प्रभु ही सर्व करत है, जीव को कियो कछु नहीं होत है। यह विवेक वैष्णव को चाहिए सो नहीं है। वैष्णव को दुख सुख में धैर्य चाहिए, वैष्णव सो नहीं है। वैष्णव को दुख सुख में धैर्य चाहिए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय में कहे हैं, त्रिदुख सहनम धैर्य मामृते है सर्वतः सदा। तक्रवद देहवद भाव्यम जड़वद गोप भार्यवत। मृत्यु समान संकट आई जाए अथवा मृत्यु हो जाए
तहाँ ताई सर्व औरतें सदा आध्यात्मिक त्रिविध यानी 3 प्रकार के दुख को सहन करनो। सो धैर्य, तक्र यानी छाछ की नाई, दूसरा जड़ भरत की नाई और तीसरा व्रज भक्तन की नाई। હવે તેનો પ્રકાર બતાવ્યો છે અથવા गोप की नाई। छाछ मथन को सहन करत है, तब मक्खन सार रूप निकसत है, फिर छाछ में ममत्व नहीं रहत है। तैसे देह विद्यमान होय तब तय कार्य करी लेनो और देह तथा देह संबंधी ममत्व नहीं राखनो। दूसरा जड़ भरत को भद्रकाली के पास मारवे को ले गई तो हूँ सहे, तब इनके तेज सो भद्रकाली की मूर्ति भिन्न होय के भीतर सो देवी निकसी, सो जड़ भरत को मारवे वारेन को मार डाले। तीसरा ब्रज भक्तन के लौकिक वैदिक तजे तामे दुख आए सो सहे। चौथू हत्वान रूपम पतिमवेक्ष्य भुजंग दृष्टम देशांतरे विधि वशात गणिकास्मि जाता पुत्रम पतिम समाधिगम्य चिंता प्रविष्टा शोचामी गोप गृहिणी कथम मध्य तक्रम। राजा को मारी के पति पास गई, तहाँ पति को सर्प डस्यो, देखी के देशांतर में गई, तहाँ प्रारब्ध सो वेश्या भई, तहाँ पुत्र के संग पति की नाई समागम भयो, तासो चिता में गिरी, तहाँ के यहाँ अब गोप की स्त्री भई, सो छाछ को शोक कहा करूं। देह में अहंता ममता सो बंधन होता है और जब यह छूटे और इन संबंधी दुख सहे तब उत्तम फल मिले। फरी एक बार मृत्यु समान संकट आई जाए अथवा मृत्यु हो जाए, तहाँ ताही सर्व औरतें सदा आध्यात्मिक त्रिविध 3 प्रकार के दुख को सहन करवो। सो धैर्य, तक्र की नाई, जड़ भरत की नाई और व्रज भक्तन की नाई अथवा गोप की स्त्री की वार्ता श्री गोकुलोत्सव जी कृत टीका में है। वह गोप स्त्री की नाई देहवारी को भावना कर्तव्य है अथवा देह की नाई भावना कर्तव्य है। या भांति आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख को वैष्णव सहन करे, तब धैर्य देखी प्रभु प्रसन्न होए। प्रहलाद जी की नाई टेक चाहिए, सो मेरे में धैर्य होना ही है और हरि के शरण में स्थिति होए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय में कहे हैं, एहि के पारलोके च सर्वथा शरणम हरिहि, दुःखहानो तथा पापे भये कामाद्य पूरणे, भक्त द्रोहे भक्त्य भावे भक्त्याश्चति क्रमे कृते, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरिहि। यह लोक में परलोक में सर्वथा हरि शरण है। दुख की हानि में तथा पाप में भय में कामादिक पूर्ण न होय तामे भक्त द्रोह करे अथवा भक्त को द्रोह हो जाए तामे भक्ति के अभाव में भक्त अतिक्रम करे अथवा भक्तन को अतिक्रम हो जाए तामे अशक्य में तथा सुशक्य में सर्व अर्थ में हरि शरण है। या भांति शरण राखे तो श्री कृष्णाश्रय में कहे, शरणस्थ सम्मोधारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम, शरण में रहवे वारे जीवन के उद्धार निमित्त अथवा उद्धार करवे वारे श्री कृष्ण को मैं विज्ञप्ति करूं हूं। ताते श्री कृष्ण के शरण जाए रहे तो प्रभु उद्धार करे, सो विज्ञप्ति करूं हूं। ताते श्री कृष्ण के शरण जाए रहे तो प्रभु उद्धार करे, सो श्री गीता जी में भगवान अर्जुन प्रति कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यास्यामि मा शुचः। सर्वधर्म को छोड़ी के मोको मुख्य जानी शरण हो, मैं तो को सर्व पापों ते छुड़ाऊंगो, शोक मति करे। या भांति प्रभु के शरण होए तो प्रभु कृपा करे, सो मैं शरण में हूँ स्थित नहीं हो। न महात्म्य परिस्फूर्ति ही स्नेहस्तु नहीं कुत्रचित, आसक्ति व्यसनादीनां कथापि खलु दुर्लभा। शब्दार्थ, महात्म्य की चारों ओर से स्फूर्ति नहीं है, काहू स्थल में स्नेह नहीं है, आसक्ति और व्यसनादि की तो कथाहु निश्चय दुर्लभ है। टीका, श्री कृष्ण के महात्म्य की स्फूर्ति हृदय में होय तो हो प्रीति होय,
जो प्रभु के प्रमेय बलते गाय, गोपी ऐसे निसाधन को फल सिद्धि भई है। अजामिल को पुत्र भाव के नामते तारियो है। अविद्या रूप पूतना को एक क्षण में मारी भक्तन की अविद्या दूरी कीनी है। पुष्टि मार्ग में स्त्री शूद्राधिकन को उद्धार श्री महाप्रभु जी किए हैं। रंचक कृपा दृष्टि ते भक्तन को सर्व कार्य सिद्ध होता है। सोमो को कहा डर है या भांति महात्म्य केहू स्फूर्ति नहीं है। चित्त में स्नेह होय यह प्रभु प्रसन्न करवे को बड़ो साधन है। काहे ते जो प्रथम प्रभु में स्नेह होय पाछे आसक्ति होय, व्यसन होय तब अनुभव होय। सो श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम हो नाही है तो आसक्ति व्यसनादि की तो कथा कहन को दुर्लभ है। सो प्रेम आसक्ति व्यसन कब होय सो त्रिविध नामावली में कहे हैं। बाण लीला नाम पाठात श्री कृष्ण प्रेम जायते। आसक्ति ही प्रौढ़ लीलाया नाम पाठात भविष्यति। व्यसनं कृष्ण चरणे राजलीलाभिधानतः। तस्मान् नाम त्रयं जाप्यं भक्ति प्राप्ति चुभी सदा। बाल लीला के नाम के पाठते श्री कृष्ण में प्रेम होय है। प्रौढ़ लीला के नाम के पाठते आसक्ति होगी। राजलीला के नाम सो श्री कृष्ण के चरणारविंद में व्यसन होय। तासो भक्ति की प्राप्ति की इच्छा वारे इनको सदा तीनों नाम जप करवे योग्य है। तासो तीनों नाम के पाठ मन लगाई के करे तब निश्चय पुष्टि भक्ति सिद्ध होय। और भक्ति वर्धिनी में कहे है ततः प्रेम तथा शक्तिर व्यसनम च यदा भवेत। तासो प्रेम तथा आसक्ति और व्यसन जब होय सो शास्त्र में बीज कहियो है। सो मोह में स्नेह नहीं है ता करी के श्री कृष्ण के चरण में आसक्ति नहीं है। और व्यसनादिक की कथा हो दुर्लभ है। भक्ति मार्ग प्रवेशो न धर्म मार्गे न च स्थिति ही। देशादि शुद्ध भावो न काल दोषान न वैदिकम। शब्दार्थ भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं है और धर्म मार्ग में स्थिति नहीं, देशादि शुद्ध भाव नहीं, काल दोष ते वैदिक नहीं। टीका यह पुष्टि मार्ग सर्वोपरि है तामे मेरो प्रवेश होना ही है। कहते जो श्री वल्लभाचार्य जी के भक्ति मार्ग में ब्रह्मादिक शिवादिक को प्रवेश नहीं है सो गोपालदास वल्लभाख्यान में गाए है। एवो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। ऐसो शुद्ध मार्ग तामे प्रवेश होय ऐसो एक साधन मोह में नहीं है। ताते यह अपने मन में जानत हो जो यह सर्वोपरि भक्ति मार्ग में दोष रूप को प्रवेश नहीं है और लोक धर्म में हो स्थिति नहीं है। ताते यह अपने मन में जानत हो जो यह अलौकिक भक्ति मार्ग है तामे स्थिति न भई। तो लौकिक में तो स्थिति हुई सो मैं लौकिक गृहादिक में हूँ स्थित नहीं हूँ। देश आदि शुद्धता को आश्रय नहीं। कितने जीव शुद्ध देश यानी तीर्थ को सेवन करत है, काशी प्रयाग व्रज देश को आश्रय करत है सो ऐसे देश को आश्रय नहीं है। वैदिक धर्म काल दृष्टि सिद्ध नहीं है। कर्म मार्ग तेहु स्वर्गादिक फल शास्त्र में कहे हैं सो काल दोषते वैदिक धर्म सिद्ध नहीं है। सो संन्यास निर्णय में कहे हैं। सो संन्यास निर्णय में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं सुतराम कली दोषाणाम प्रबलत्वात्। अब कली दोष की प्रबलता सो ऐसी स्थिति है। और श्री कृष्णाश्रय में कहे हैं नानावाद विनष्टेषु सर्व कर्म व्रतादिषु पाखंडेक प्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। सर्व कर्म और व्रतादिक नाना प्रकार के वाद करी के नष्ट भय और पाखंड को ही मुख्य प्रयत्न जामे है तामे कृष्ण ही मेरी गति है। या भांति कलिकाल पाए के मर्यादा मार्ग के साधन सब नष्ट भय तासो मैं वैदिक कार्य में हूँ नहीं हूँ। न च व्यावृत्ति राहित्यम व्यावृत्तो न हरो मनः न त्यागश्चापि सेवार्थम स्वतंत्रस्य तु का कथा। शब्दार्थ
व्यावृत्ति रहित बनो नहीं है। व्यावृत्ति में हूँ हरि में मन नहीं है और सेवा के लिए त्याग हूँ नहीं है। तो मन को अपने वश करी के स्वतंत्र होइवे की तो वार्ता कहा। टीका। मैं अव्यावृत हूँ नहीं हूँ। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में कहे हैं, अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः। अव्यावृत होय के पूजा या सेवा श्रवणानी करी के श्री कृष्ण को भजे। या भांति अव्यावृत होय भगवत धर्म सेवा करे, कथा सुने। अव्यावृत हूँ नहीं, व्यावृत्ति करत में हूँ, हरि में चित्त चाहिए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में कहे हैं, व्यावृत्तोऽपि हरो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। व्यावृत्ति युक्त हो सदा हरि में चित्त को स्थापे और श्रवणादिक में यत्न करे। या प्रकार व्यावृत्ति करत में हो, भगवान में मन नहीं है। जैसे संत दास जी कोड़ी बेचते कहते बोलते नहीं और भगवत सेवार्थ दे इंद्रिय मनते लौकिक वैदिक को त्याग नहीं है। जो त्याग न होय तो सेवा न बने। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी सेवा फल में कहे हैं, उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकः। उद्वेग, प्रतिबंध और भोग यह बाधक है। प्रतिबंध दो प्रकार को है, साधारण और भगवतकृत। तामे साधारण प्रतिबंध को त्याग अपनते हो सके सो करनो। दूसरो भोग दो प्रकार को है, लौकिक और अलौकिक। तामे लौकिक भोग को त्याग करना और अलौकिक भोग को दे के त्याग नहीं करनो। स्वार्थ के ताई त्याग करनो और सेवा के ताई त्याग करनो। उद्वेग, प्रतिबंध और भोग यह बाधक है। जो बाधक है ताको त्याग करनो। सो सेवा फल में कहे हैं, बाधका नाम परित्यागो भोगेप्येकम तथा परम। बाधकन को परित्याग करनो, भोग में हो लौकिक को त्याग करनो। उद्वेग, प्रतिबंध, भोग, विषयार्थ आछो खानपान ताको त्याग हो, सेवा अर्थ नहीं। स्वतंत्र नहीं हो, देह इंद्रियन के व्यवश्य हो। काहे ते जो विषयादिक भोग को त्याग नहीं है, ताको स्वतंत्र की कथा कहा। या भांति मन सब ढोरते लौकिक वैदिक ते स्वतंत्र होय, प्रभु शरण नहीं है। न कृष्ण विरह स्फूर्ति ही संयमो न च वाग्दृशो हो। न उदासीन्यम भक्तेषु नाना शक्तिर्गृहादिषु। शब्दार्थ। श्री कृष्ण के विरह की स्फूर्ति नहीं, वाणी और मन को संयम यानी निरोध नहीं, अभक्तन में उदासीनता नहीं, गृहादिक में अनासक्ति नहीं। टीका। श्री कृष्ण के विरह की स्फूर्ति नहीं है। काहे ते जो श्री कृष्ण के विरह की स्फूर्ति सर्व वैदिक लौकिक कार्य की विस्मारक है। सो काहे ते विरह ते दैन्य होय। जैसे रास पंचाध्याय में प्रभु अंतर ध्यान भय, तब मुख्य भक्तन को विरह भयो, तब दैन्य ते कहियो, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधि। हाँ नाथ रमण प्रिय कहाँ हो हे बड़े भुजावारे, हे सखे आपकी दासी मैं हूँ, तिनको सन्निधि बताओ अर्थात दर्शन देव। तथा सब व्रज भक्त रुदन करने लगे। ऐसो दैन्य भयो, तब प्रभु प्रगटे। ताते यह पुष्टि मार्ग में केवल विप्रयोग ही फल रूप है। ऐसे फल रूप विप्रयोग की स्फूर्ति होना ही है और वाणी को तथा नेत्रन को संयम होना ही है। सो श्री भागवत में कहे हैं, बर्हायितेन नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये जिह्वा सती दार्दुरिके व सुत न चौपगायत्युरुगा न गाथा। जो नेत्र भगवान के चिन्ह को नहीं दर्शन करत है, सो नेत्र मोर की चंद्रिकावत अर्थात कछुआ को उपयोग के नहीं। और जो जिह्वा उरु गाय बहुत ने गाय ऐसे भगवान की कथा को गान नहीं करत है। सो जिह्वा दुष्ट दादुर की नाई यानी व्यर्थ रटवे वाली है। यह दो महाबाधक है। काहे ते जो वाणी को निरोध न होय तो मुखरता दोष होय और
नेत्रंसो दोष देखनो या में हृदय दोष रूपो थे। साथे वाणी और नेत्र को अवश्य निग्रह चाहिए तथा भगवदीय में स्नेह चाहिए। काहे ते जो इनके संग ते यह पुष्टि मार्ग को फल सिद्ध होता है। यह निश्चय सिद्धांत है। सो भगवदीय सो स्नेह नहीं और अभक्त में उदासीनता नहीं है, तासो यह मार्ग में आवेश कैसे होएगो। और गृहाधिक कार्य में मन करी आसक्त होय यह महाबाधक है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ठोर ठोर दूषण कहे हैं और श्री भागवत में हूँ सब ठोर प्रसिद्ध है। जो गृहाधिक लौकिक में कार्य में आसक्त है तिनको भगवान के धर्म दुर्लभ है। तासो गृहाधिकन में अनासक्ति चाहिए अर्थात आसक्ति न चाहिए। सो नहीं है, मैं गृहाधिकन में आसक्त हूँ। नाहंकारादि राहित्यम न सो धर्म परिग्रह नान्य धमल निवृत्तिश्चकिम करिष्यति मत प्रभु मयि दोष निधाने तु सर्व सद्गुण वर्जिते निसाधनत्वमेव हि स्वस्य नित्यम विभावयेत। शब्दार्थ अहंकारादि कंसो रहित पनो नहीं, अपने धर्म जो भक्ति मार्ग ताको सब औरते ग्रहण नहीं और अन्य धर्म की निवृत्ति नहीं। ऊपर कहे सगरे दोष को निधान यानी भंडार रूप और सर्व सद्गुण करी वर्जित मैं हूँ। तापे मेरे प्रभु स्वामी श्री कृष्ण कहा करेंगे। ऐसे नित्य अपनी निसाधनता की भावना करनी। टीका अहंकार भक्ति मार्ग में बाधक है। सो विवेक धैर्याश्रय में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्याधीनत्व भावना। स्वामी के अधीनता की भावना सो अहंकार आचरित सो छोड़नो। स्वतंत्र होए सो अहंकार करे। दास को धर्म नहीं तासो दास होए के अहंकार करे तो दास धर्म जात रहे। ताते दास को तो अपने स्वामी श्री कृष्ण के अधीनत्व की भावना कर्तव्य है। सो मैं अहंकार करी रहित नहीं हूँ। और पुष्टि मार्गीय वैष्णव को अपने धर्म को परिग्रह चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जैसे चित स्वामी सो बीरबल ने कही, जो तुम पद में श्री गुसाई जी को श्री ठाकुर जी को रूप करी के गावत हो, सो देशाधिपति पूछेगो तो कहा जवाब देओगे। इतनो सुनथी चित स्वामी कहे, जो मेरे भाई तो तुम ही मिले छो, जा आजू पाछे तेरो मुख न देखूंगो। ऐसे कही के बासुंदी हूँ छोड़ी चले आए। या भांति अपने स्वधर्म की रक्षा करे। काम क्रोध मद मत्सर तासो रक्षा करे। सो मैं तो कोई प्रकार स्वधर्म को परिग्रह नहीं करत हूँ। और यह पुष्टि मार्ग में अन्य धर्म जितने हैं सो सगरे पुष्टि मार्गीय वैष्णव को बाधक है। सो मैं अन्य धर्म ते निवृत्त नहीं हूँ। ऐसे 32 दोष संयुक्त मैं हूँ। सो हे मेरे स्वामी श्री कृष्ण तुम मेरे स्वामी हो। सो कहा करेगो, त्याग करोगे कि अंगीकार करोगे, सो मोको नहीं जानी पड़त है। अब श्री हरिराय जी कहत है, जो ऊपर दोष कहे सो 32 ही है, ऐसे मती जानियो। मैं दोष को निधान हूँ, अपार दोष है, गिनत गिनत जिनको पार न होय इतने दोष है। और सुंदर गुण करी रहित हूँ, एक हो गुण मुँह में नहीं है। सो प्रभु कहा करेंगे। या भांति निसाधनता की भावना नित्य ही कर्तव्य है। काहे ते जो निसाधन हो ता पर दया करी तिनके हृदय में प्रभु पधारी अनुभव करावे। इति श्री हरिराय जी कृत 37तम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम। आम आ रीते श्री हरिराय महाप्रभुजी रचित 37મો શિક્ષાપત્ર નિસાધનતા ભાવના પ્રકાર અહીં વિરમે છે। શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આ શિક્ષાપત્રમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે નિસાધનતાનો પ્રકાર બતાવ્યો છે કે કઈ રીતે નિસાધનતાની ભાવના કરવી। માટે આપણે પણ આ રીતે ભાવના નિત્ય કરવી કે દાસ ધર્મ આપણો જાળવી રાખવો।
આ રીતે આજનો આ સત્સંગ શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રીનાથજી, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.